Good morning, students. Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Magnesium, premium and blood urea and nitrogen, blood glucose, PN, chest X-ray, ECG, echo cardiogram, પછી Holter monitoring, exercise electrogram test, MRI, પછી magnetic perfusion, imaging test, ecophysiological test, electron beam test. Okay, CT, combined tomography, TBCT. Then online students, what we have completed yesterday? इलेक्ट्रोलाइट्स એમાં પોટેશિયમ સોડિયમ કેલ્શિયમ ફોસ્ફરસ મેગ્નેશિયમ કે જે હાર્ટને ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે દેન બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન બ્લડ ગ્લુકોઝ બી ટાઈપ ને ટ્રિયુટેરિક પેપ્ટાઇડ વિશે જોયું હતું દેન ચેસ્ટ એક્સરે અને ઇન્ટરવેન્શન ECG અને ઇન્ટરવેન્શન એન્ડ બેસિક્સ Holter monitoring echocardiography then treadmill stress test and pre and post procedure intervention. Then MNPI વિશે જોયું હતું. Then MRI, electrophysiological study અને electron beam CT વિશે જોયું હતું. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. We have completed electrolytes. In that, first was potassium. So potassium directly affects the heart. Potassium सीधा heart को affect करेगा. So उसका ECG जो changes है due to hyperkalemia and hypokalemia, you have to remember this. If there is a hypokalemia, what ECG changes you can see in a patient or cardiac monitor? Appearance of you. Yes. Right. Online students, what are the ECG changes for hypokalemia? Write it down if you cannot remember this thing. Flat કે પછી inverted T wave, then U wave appear થશે અને ST depress થશે. Yes, अगर आपको याद नहीं रहता तो एक नोट बना के आपकी स्टडी वॉल पर चिपका दो, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट. हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या ईसीजी चेंजेस होंगे? T wave peak થશે, QRS complex wide થશે, PR interval છે prolong થશે અને જે T wave છે flat થશે. Yes, so tall peak T wave opposite to hypokalemia, QRS एकदम वाइड हो जाएगा, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग लंबा चलेगा एंड P wave एकदम फ्लैट हो जाएगी. So these are the changes that you have to remember. सोडियम डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट नहीं करता, इट अफेक्ट्स द ब्रेन. बट हमने देखा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया होता है. सो अगर पेशेंट का सोडियम लेवल आप चेक करोगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा. अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ड्यू टू हार्ट फेलियर देयर इज अ फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड. सो इन दिस कंडीशन सोडियम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया होगा. डायूरेटिक्स ले रहा होगा पेशेंट तब भी सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम भी कम होगा. देन हमने देखा था कैल्शियम. कैल्शियम विच डायरेक्टली अफेक्ट्स विच ऑर्गन? Muscle. मसल को. एंड हार्ट का जो मायोकार्डियम है दैट इज द मसल. मसल का ही लेयर है, सो इनडायरेक्टली वो हार्ट को भी अफेक्ट करेगा ड्यू टू मसल्स. सो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया की वजह से क्या चेंजेस होंगे? We have to just know. There is no need to remember the ECG changes for this. ECG changes सिर्फ पोटेशियम के लिए important है. Okay, but इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. Whenever there is a hypercalcemia, what about muscle activity? હાઇપોકેલ્શિયમમાં મસલ એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે અને હાઇપરકેલ્શિયમમાં મસલ એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થશે. Yes, so opposite muscle activity होती है. Whenever there is hypocalcemia, muscle activity will increase. In hyper, muscle activity will decrease. Phosphorus level directly कोई organ को affect नहीं करता है, but phosphorus and calcium are inversely proportional to each other. एक increase होगा तो एक decrease होगा. So ultimately phosphorus level change होंगे तो calcium levels affect होंगे और उसकी वजह से heart पर असर हो जाएगा. Magnesium muscles को ही affect करता है, but not that much
that calcium affects the muscles, but magnesium की असर है muscles पर. So same like calcium, whenever there is hypermagnesemia, the muscle activity will reduce. Hypomagnesemia में muscle activity will increase, but not that much of calcium. Calcium जितना असर नहीं होता है, but वो muscles को ही affect करता है. Then what is this very important point? Yes, online students, what is this really important point? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કે જે મિનરલનું ઇમ્બેલેન્સ થશે એ જે હાર્ટની ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એને ઇનસ્ટેબલ કરી દેશે અને એ લાઈફ થ્રેટનિંગ दिशा ડેમેજ થશે. यस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमारे जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अनस्टेबल कर देगा, और उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियास हो सकते हैं, पेशेंट कैन डाई. फिर हमने बीयूएन देखा था. बीयूएन डायरेक्टली हार्ट से कोई लिंक नहीं रखता है, बट अगर हार्ट फेलियर होगा तो मेजर ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, एंड किडनी में भी नहीं होगा. सो ड्यू टू दैट किडनी फेलियर हो जाएगा एंड बीयूएन इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड ग्लूकोज हमने देखा था. ब्लड ग्लूकोज डायरेक्टली कुछ लिंक नहीं रखता है, बट whenever there is a cardiac episode, कुछ cardiac episode आता है, बॉडी के लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ड्यूरिंग दैट सिचुएशन कॉर्टिजोल इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा. बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, बीएनपी. बीएनपी डायरेक्टली हमें पता चलता है हार्ट के से वो लिंक है. बीएनपी वैल्यू एलिवेट कब होती है? जब आप कोई पेशेंट का बीएनपी टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट, और बीएनपी ज्यादा आई है, व्हाट डज इट इंडिकेट? व्हाट डज इट इंडिकेट? मोर सीवियर हार्ट फेलियर છે. यस, सीवियर हार्ट फेलियर हो गया है. जब वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया स्ट्रेच होते हैं तो उसकी वजह से ये बीएनपी रिलीज होता है ब्लड में. सो जितना ज्यादा होगा इट इंडिकेट्स हार्ट फेलियर है. इट शुड बी लेस देन 100 नैनोग्राम पर एमएल. याद ना रहे तो चलेगा. चेस्ट एक्सरे हमने देखा था. चेस्ट एक्सरे नॉर्मल हमें पता है कि हम विजुअलाइज रेडियोग्राफिक इमेजिंग करते हैं, उससे हमें साइज पता चलेगी, सिलहॉट पता चलेगा. व्हाट इज सिलहॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिलहॉट? सिलोट मीन्स बॉर्डर. बॉर्डर्स पता चलेगी. हाँ, वी कैन डिफ्रेंशिएट कि ये लंग्स है, ये हार्ट है. सो सिलहॉट है, मतलब हम बॉर्डर्स पता नहीं कर पाएंगे. नॉर्मल अगर प्रॉब्लम है तो नहीं पता चल जाएगा, लाइक पेरिकार्डियल इफ्यूजन और वो सब है तो वो भी हमें पता चलता है. व्हाट इज द नॉर्मल बॉर्डर ऑफ हार्ट? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हार्ट? नॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट? लीवोकार्डिया, एबनॉर्मल पोजीशन? डेक्स्ट्रोकार्डिया. डेक्स्ट्रोकार्डिया. सो वो भी हमें पता चलेगा. इंटरवेंशंस में उतना ध्यान रखना है. पेशेंट को हम बोलेंगे, यहाँ पर हम लंग एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द इनहेलेशन एंड ब्रीथ होल्डिंग प्रोसीजर, राइट? बिकॉज हमें लंग नहीं, हमें सिर्फ देखना है, हार्ट के बॉर्डर के लिए है. सो वो चीज ध्यान रखना है कि किसका एग्जामिनेशन कर रहे हो. अगर लंग्स का है तो वो हमारा स्टेप आ जाएगा. सो यहाँ पर इनहेलेशन और वो कोई मैटर नहीं करता है. बस पेशेंट का कोई भी चेस्ट एरिया में मेटल का कुछ होना नहीं चाहिए. नो मेटल शुड बी देयर. ज्वेलरी सब रिमूव करना है. And patient should not be pregnant. कोई भी चांस ना हो कि that she has tried for conceiving, कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा. फिर हमने ईसीजी देखा था. ईसीजी मतलब जो हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हम एक पेपर पर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ईसीजी. ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है. पेशेंट के लिए प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे? पेशेंट को समझाओगे कि कुछ नहीं होगा, यू विल नॉट रिसीव एनी शॉक, आपको कुछ करंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको शांति से बिना हिले सोना है, बातें नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है. सो ये सब आप पेशेंट को समझा दोगे. देन ईसीजी में ये खास इंपॉर्टेंट याद रखना है. चलो बेसिक्स ऑफ ईसीजी बोलो. बेसिक्स ऑफ ईसीजी में व्हाट डज पी वेव इंडिकेट? पीआर इंटरवल क्या इंडिकेट करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है? एसटी सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यूटी इंटरवल वो सब क्या है? टेल मी. चलो, व्हाट डज पी वेव इंडिकेट? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. यस, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. आपको जैसे भी याद रहे सिंपल टर्म्स में लिखना है, हमें समझना है. वी डोंट वांट टू लाइक राइट हैवी वर्ड्स. अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन इजीली याद रहते हैं तो वो रखो. सो पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. देन पीआर इंटरवल. જે ઇમ્પલ્સ જે છે એ ટ્રાવેલ જે કરે છે એટ્રિયાથી પરથી જે ફાઇબર સુધી છે
ओके, सो Uh, एट्रिया in कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जब उनके पास इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचे। सो इलेक्ट्रिकल करंट को ऐसे नोड से एवी नोड जाना होगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हीट देन पर्किंजी फाइबर्स, तब जाके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो ये जो पूरा जो ट्रैवलिंग प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या नोट करते हैं हम एज अ इसी PR पीआर इंटरवल। सो पीआर इंटरवल मतलब सिंपली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ट्रैवल हो रही है, दैट्स इट। अब ट्रैवल हो गई है, अब बारी है कॉन्ट्रैक्शंस वेंट्रिकल्स। तो अब क्या आएगा ईसीजी में, आफ्टर पीआर इंटरवल देयर विल बी, QRS complex. यस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है? Ventricular contraction. यस, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ये एक ऐसा क्यूआरएस पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्यू एंड एस थोड़ी स्लाइटली डिप्रेस्ड है। क्यों स्लाइटली, क्यों डिप्रेस्ड है, नेगेटिव साइड क्यों है? बिकॉज हाँ, जो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, जस्ट लाइक ऐसे याद रखो कि जब आपको कोई बोले यू हैव टू जंप, हम थोड़ा लाइक नीचे बैठते हैं देन वी जंप, सो जस्ट लाइक दैट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आर है, दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्यू थोड़ा डिप्रेस होगा, देन जोर से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आर, देन फिर से वो नीचे जाएगा, सो दैट इज एस। एस के बाद आता है जे पॉइंट, जहां पर कंप्लीटली एंड हो गया। उसके बाद आता है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट मींस नो, व्हाट इज एसटी सेगमेंट? Early से ventricular repolarization से वेंट्रिकल्स, यस, रिलैक्स होना स्टार्ट हो गए हैं। एंड एसटी के बाद टी वेव आता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नाउ द वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। सो अब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, राइट। सो पूरा यहां से हम देखिए क्यू से लेके पूरा टी तक इंटरवल, सो क्यू जब स्टार्ट हुआ एंड टी एंड हुआ, तब तक का पूरा इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, क्या रिप्रेजेंट करता है क्यूटी इंटरवल? किसका? मतलब यस, सो क्यूटी इंटरवल इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर एक्टिविटी। इतना टाइम लगता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में एंड रिलैक्स होने में, फिर से वापस से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो वो साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। सो ये सिर्फ इतना समझना है, टाइम ड्यूरेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला है, बट ईसीजी समझने के लिए अगर आपको पी क्या है, पीआर क्या है, क्यूआरएस क्या है वो पता होगा तो ईसीजी समझ आएगा। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो ये चीज याद रखना। फिर हमने देखा था हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर मॉनिटरिंग मतलब यस, सो हॉल्टर मॉनिटरिंग एक ऐसा डिवाइस है जो पेशेंट पहन के रखेगा, वेस्ट पर एक मशीन पहन के रखेगा, एंड ईसीजी क्या है, पेशेंट आता है, हम ईसीजी प्रिंट निकाल देते हैं, देन इट्स ओवर। बट व्हाट इफ वी वांट टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल पैटर्न फॉर 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स, तब हम ये पेशेंट को हॉल्टर मॉनिटरिंग डिवाइस पहनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रोड्स है, अप्लाई कर देंगे, वो डिवाइस पहन के पेशेंट नॉर्मल जो वर्क है, ऑफिस जाना, जॉब, जो भी उसका काम है, हाउस वाइफ है तो घर पे रहेगी फीमेल, सो जो भी उसका काम है नॉर्मल एक्टिविटी करना है। पेशेंट को एक डायरी मेंटेन करनी है कि कितने बजे क्या किया था, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर सके कि इसमें ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी इम्बैलेंस थी, डिसरिदमिया सा, तो उतने बजे क्या किया था पेशेंट ने। देन पेशेंट को कुछ सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहा है, पर्सपिरेशन, सिनकोप है, पाल्पिटेशन है, टेकिकार्डिया, तो वो भी पेशेंट नोट डाउन करेगा कि इतने बजे ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। सो ये सब हम चेक करेंगे, लास्ट में इवेल्युएट करेंगे। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है ये प्रोसीजर के लिए? सिंपली पेशेंट को बोलना है कि आपको नॉर्मल सब एक्टिविटी करना है, पानी से सिर्फ दूर रहना है। पेशेंट कैन नॉट टेक शावर आफ्टर वियरिंग दिस डिवाइस, स्विमिंग पूल, कुछ भी पानी में नहीं जा सकता पेशेंट। देन हमने देखा इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मीन्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज इकोकार्डियोग्राफी? USG of heart.
यूएसजी ऑफ हार्ट की सोनोग्राफी हम करते हैं, इको जो बोलते हैं वो। सो सिंपली हम बाहर से प्रोब लगाकर देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर्स कैसी है, एबनॉर्मलिटीज है या नहीं, वाल्व में, वॉल्स में कुछ भी एबनॉर्मलिटी कंजेनिटल, वो सब हमें देखने को मिलेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन, ओके, आई हैव टोल्ड यू टू डू सम असाइनमेंट, व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। चलो बोलो। ओके ओके પછી stroke volume માં the volume of blood pump out of the heart from left ventricle during systolic time period मतलब systolic contraction है। एक्सप्लेन मी इन सिंपल टर्म्स, आप क्या समझे? डेफिनेशन तो मुझे भी पता है, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? चलो बोलो। यू हैव नॉट डन योर असाइनमेंट। એમાંથી કેટલું amount of blood pump out થાય છે इन 1 मिनट, इन 1 पंप। कार्डियक आउटपुट मतलब कि हार्ट में से कितना ब्लड निकल रहा है, सो वो भी पंपिंग कॉन्ट्रेक्शंस के बाद ही निकलेगा। सो हार्ट में से कितना ब्लड निकलता है इन 1 मिनट, राइट? दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। यू हैव सेड इजेक्शन फ्रैक्शन, so you have said that when during ventricular contraction how much blood comes out from the heart, so same हुआ ना वो, सॉरी, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो वो सेम नहीं हुआ कार्डियक आउटपुट जैसा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? ઇજેક્શન ફ્રેક્શન પર્સન્ટેજમાં હોય. Okay, but what is stroke volume? We will move then to the ejection fraction. कार्डियक आउटपुट पता चल गया सबको? 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम देन? You have seen it correct, but एक रह गया कि in 1 minute in 1 pump क्या? Find it out. There is a difference. 1 minute तो cardiac output है. So what will be the difference? Stroke volume and cardiac output का difference क्या होगा? चलो, other students tell me if you have not વોલ્યુમ find. हाँ बोलो. પર બીટ પર જે બ્લડ અમાઉન્ટ ઇજેક્ટ થાય એ. Okay, yes. So heart एक contraction पर single, not in 1 minute. हमें पता है 1 मिनट में 60 to 100 times हार्ट पंप करता है। सो एक पंप में कितना हार्ट इजेक्यूलेट करता है कॉन्ट्रेक्शन में? जस्ट फॉर एग्जांपल, हार्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है, सो डायस्टोलिक स्टेट में है, तब वो भर जाएंगे। सो ऐसा बोल सकते हैं कि 100 ml फील हो गया हार्ट, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पूरा का पूरा 100 ml नहीं निकल सकता, शायद 70 ml निकला। सो एक पंप में वेंट्रिकल में से 70 ml ब्लड निकला, सो स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी 70 ml। Understood? So what is ejection fraction? ऐसा भी याद रख सकते हो, डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम, ऐसा कुछ है। परसेंटेज में होता है, डिवीजन करना होता है। What is ejaculation fraction, ejection fraction? percentage हाँ, परसेंटेज में निकालेंगे, बट व्हाट इज दैट? each rate पर कितनी ventricular left ventricular feeding process Online students, there is some mistake. pump out the हाँ, तो પછી સ્ટ્રોક વોલ્યુમ અને ઇજેક્શન ફ્રેક્શન સેમ ના થઈ ગયું?
ઈચ બીટ પર કેટલું હાર્ટ બ્લડ બહાર નીકાળે છે. Stroke volume means also same. In a single beat, how much amount of blood the ventricles pump out from the heart. That is called as stroke volume. So you are saying in each beat, how much amount of heart is ejecting the blood, ventricle is ejecting the blood is called as ejection fraction. So why there is different name? If the definition is same, there must be some difference, right? And what is the difference? Find it out. Tell me, online students. टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, आप लोग करते नहीं हो असाइनमेंट. ejection fraction heart the volumetric fraction of blood injected from a ventricle or atrium with each contraction. मतलब मतलब ventricle અને atrium ના contraction થી જે blood the volumetric of the blood inject થાય છે ventricular અને atrium માં with each contraction. online students, tell me what is ejection fraction. This is not good. चलो नहीं किए तो अभी गूगल करो. राइट नाउ टेल मी. હાર્ટ એકવાર પંપ થઈને જે બ્લડ ફ્લો हाँ बोलो. મળે કેટલું બ્લડ ફ્લો So that is not, isn't it stroke volume? Stroke volume में भी तो सेम होता है. એક આખી સાયકલ પછી જે બ્લડ ફ્લો થાય એ. स्ट्रोक वॉल्यूम में पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो ब्लड निकलता है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. और इजेक्शन फ्रैक्शन, ઇજેક્શન ફ્રેક્શન સ્ટ્રોક વોલ્યુમમાં તો ખાલી એક જ વાર કોન્ટ્રાક્શન થઈને જે બ્લડ ફ્લો થાય છે એ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ છે. ओके. सो पूरी साइकिल मतलब 1 मिनट की साइकिल होती है, राइट? सो उसके बाद निकलेगा तो फिर उसको कार्डियक आउटपुट नहीं बोलेंगे हम. યસ हाँ. सो फिर व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? Percentage heart ejection fraction. હાર્ટની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી મેજર કરે કે હાર્ટ કેટલું વર્ક કરે છે. समवॉट वी कैन से कि उस पर से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है. जितना इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट इतना वर्क कर रहा है. હા हाँ. सो इट इज समवॉट लाइक दैट. बट अभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा मीनिंग, मेन मीनिंग it is same like stroke volume. each pump पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे कितना, ईच पंप पर कितना ब्लड निकलता है, बट नॉट इन ml, इट इज इन परसेंटेज. सो वेंट्रिकल्स, everyone please mute yourself. सो ईच कॉन्ट्रैक्शन पर कितना परसेंटेज वेंट्रिकल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड निकाल रहा है. सो स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन बोथ आर सेम, बट स्ट्रोक वॉल्यूम इज मेजर्ड इन ml and ejection fraction is measured in percentage. There is one formula, डिवीजन होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का कुछ ऐसे फॉर्मूला है. बट इतना याद रखो कि इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब ईच बीट पर, एक बीट में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड निकालते हैं, बट इट शुड बी मेजर्ड इन परसेंटेज. सो ऐसा आपने देखा होगा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका हार्ट 50% वर्क कर रहा है, 80% वर्क कर रहा है. सो दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन. सो इको से हमें पता चल जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, कितना वर्क कर रहा है हार्ट, कितना परसेंटेज निकल रहा है ब्लड. स्ट्रोक वॉल्यूम में ईच बीट पर कितना ml ब्लड बाहर निकल रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक आउटपुट मतलब पूरी 1 मिनट में एक जितनी भी बोट 60 टाइम्स अगर हार्ट बीट होके स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम है पेशेंट का 70 ml,
ईच बीट में 70 ml निकलता है। पेशेंट की हार्ट रेट है 75 बीट्स, सो 70 मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे, जितना ब्लड है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। सो 1 मिनट में कितना ब्लड निकलता है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंस? यस और नो? ओके, सो इको से हमें ये सारी चीजें पता चलेगी। इंटरवेंशन में कुछ नहीं करना है, पेशेंट को पोजीशन देंगे एंड पेशेंट को बोलना है शांति से पड़े रहना है, बिना विदाउट मूविंग एंड बात टॉकिंग नहीं करना है। ओके, देन हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग देखा था, जिसमें स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सरसाइज वाला, एक फार्माकोलॉजी वाला, एक रेडियो आइसोटोप वाला। एक्सरसाइज वाला सबसे कॉमन यूज होता है, जिसको हम अदर लैंग्वेज में ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्टिंग भी बोलते हैं। उसका अदर नेम है एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्टिंग। पेशेंट को सिंपली क्या बोलेंगे हम, पेशेंट लाइट ब्रेकफास्ट करके आएगा 1 to 2 आवर पहले से, एंड पेशेंट को ट्रेडमिल पर हम भगाएंगे एंड वी विल चेक कि जैसे पेशेंट एक्सरसाइज करता है, हार्ट की डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की, तो कोरोनरी आर्टरीज उसको कंपेंसेट कर पा रही है, हार्ट कंपेंसेट कर पा रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर नहीं कर पा रहा है, मतलब पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज हेल्दी नहीं है कि मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई दे सके, सो मायोकार्डियम अच्छे से वर्क करे। बट कुछ कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट ये एक्सरसाइज टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, तो कर नहीं सकता या कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम फार्माकोलॉजी वाला यूज करेंगे। बट उसमें पेशेंट को एनपीओ करना होता है 3 to 6 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, एंड हम मेडिकेशंस डालेंगे लाइक डोब्यूटामाइन, जो कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट कर सके, स्टिमुलेट कर सके, लाइक एक्सरसाइज होते वक्त कैसा डायलेशन होता है, सेम मिमिक कर सके। फिर हम देखेंगे कि अब कार्डियक एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है कि नहीं। सो सिंपली हम ये चेक करेंगे। पेशेंट की इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होगी इन ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट ऑल्सो, दो इट इज नॉन इन्वेजिव, पेशेंट की इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होगी। वाई? Online students, TST is a non-invasive, though we have to take informed consent. Why? फार्माकोलॉजिकल और रेडियो आइसोटोप कर रहे हैं तो चलो उसमें लेंगे, दैट इज ओके, इन्वेजिव हम कर रहे हैं। बट टीएसटी तो नॉन इन्वेजिव है, हम कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। देन व्हाई देयर इज नीड टू टेक इन्फॉर्म कंसेंट? ड्यू टू स्ट्रेस हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो इस वजह से। हाँ, ड्यूरिंग टीएसटी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, पेशेंट इट कैन बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, सो इसीलिए पहले से कंसर्न लेनी होती है। देन प्रॉपर रेस्ट करना है पेशेंट को, कैफीन, स्मोकिंग, अल्कोहल वो सब नहीं लेना है बिफोर द प्रोसीजर। मेडिकेशंस के बारे में पीएचसीपी या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, बंद करनी है, क्या करना है। जनरली हमें इतना पता होना चाहिए, थियोफाइलिन वाली जो मेडिकेशन है वो 12 घंटे पहले बंद करनी होती है। सीसीबीज एंड बीटा ब्लॉकर्स है, वो एट द डे, ऑन द डे ऑफ द टेस्ट हम विड्रॉ करेंगे, मतलब मॉर्निंग डोज पेशेंट नहीं लेगा। पेशेंट को बोलना एकदम कंफर्टेबल लूज क्लोथ, प्रॉपर शूज पहन के आए कि इंजरी एक्सीडेंट्स ना हो। एंड अगर ड्यूरिंग द टेस्ट, चालू टेस्ट में पेशेंट को डिजीनेस, सिनकोप या चक्कर आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, इमीडिएटली नोटिफाई करना है कि स्टॉप कर देंगे हम टेस्ट। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को बोलना है हॉट वाटर, हॉट शावर, हॉट बाथ ना ले। क्यों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, why patient cannot take hot water bath or hot shower? Hot baths कुछ नहीं ले सकता। why? ऑनलाइन स्टूडेंट्स असाइनमेंट करते नहीं है, उनको लगता है कि कोई एक आंसर दे देगा तो हो जाएगा। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ओके, फिर हमने देखा था मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग, एमएनपीआई। मतलब जस्ट लाइक एक सिटी स्कैन जैसा डिवाइस होता है, पेशेंट को अंदर हम सुला देंगे, बट इंस्टेड ऑफ डाई वी विल इंसर्ट रेडियो आइसोटोप मटेरियल। उससे हमें परफ्यूजन पता चलेगा कि कैसे प्रॉपर परफ्यूजन हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है। जितना परफ्यूजन अच्छा होगा हार्ट का, हार्ट अच्छे से काम करेगा। हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको मिलेगा तो अच्छे से वो काम करेगा। देन प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन, इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। पेशेंट को बोलना है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, रेडियो आइसोटोप है, सो रेडिएशन का रिस्क नहीं है। एंड पोस्ट प्रोसीजर वाइटल्स चेक करने हैं, जहां से हमने पंचर किया है वहां पर ब्लीडिंग तो नहीं है, रेडनेस, वो सब चेक करेंगे। इसकी एलर्जिक
प्री प्रोसीजर ही हम पेशेंट को पूछ लेंगे कि पहले कभी ऐसा कुछ टेस्ट करवाया, एलर्जिक रिएक्शन आया था कि नहीं आया था, वो सब पहले पूछ लेंगे। बाद में मॉनिटर करेंगे कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ कि नहीं। देन हम कभी भी ऐसा कुछ इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को फ्लूइड इनकरेज करना है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो पानी ज्यादा पीना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते रहना है, और फटीग हो सकता है ये पेशेंट को बोल देंगे हम। फिर हमने देखा था एमआरआई। एमआरआई मतलब जो नॉर्मल हम करते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी यूज करके हम हार्ट के एंड कोरोनरी आर्टरीज के फोटोग्राफ्स लेते हैं टू चेक कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। प्री प्रोसीजर पेशेंट को चेक करना है कि उसमें कुछ मेटल इम्प्लांटेशन ना हो, लाइक पेसमेकर, और कुछ भी ऑर्थो का कोई भी मेटल की डिवाइस उसके अंदर ना होनी चाहिए। पेशेंट ने जो पहना है मेटालिक बाहर से वो सब रिमूव कर देना है, ज्वेलरी, इयररिंग्स, रिंग, सब कुछ। एंड पेशेंट को पहले से ही हम वार्न कर देंगे, एंड पेशेंट को अगर है कंसर्न क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम है तो वो उसको सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट। एंड अगर नहीं है तो पहले से उसको प्रिपेयर कर देंगे कि बी रेडी फॉर दिस, आपको ये फीलिंग होगी, सो पहले से ही प्रिपेयर रहे। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, उसमें क्या करते हैं हम, ओके फिर क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी? हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे टिल ऐसे नोड तक कैथेटर इंसर्ट करेंगे हम। फिर वो कैथेटर से पेशेंट को शॉक देंगे, माइक्रो शॉक होता है। तो चेक करना है कि पेशेंट के डिसरिथमियाज हुए कि पेशेंट ने वो टॉलरेट कर लिया, उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा है, या तो शॉक जनरेट नहीं हो पा रहा है या कंडक्शन नहीं हो रहा है। सो क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड कौन सी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सो हम इन शॉर्ट पेशेंट को शॉक देने वाले हैं कैथेटर इंसर्ट करके। देन ईबीसीटी एक सीटी स्कैन ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम, हम कुछ डाई कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। जनरली क्या करते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम डाई इंसर्ट करते हैं वो, बट इन दिस प्रोसीजर वी आर नॉट इंसर्टिंग एनी डाई। पेशेंट सिर्फ एक सीटी स्कैन के मशीन में सो रहा है, एंड एक इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर लाइट जैसा पड़ेगा, और वो लाइट क्या करेगी, जो कोरोनरी आर्टरीज है उसका कैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं उसका एक स्कोर देगी। आइडियली 300 से ऊपर चला जाता है, इट इंडिकेट्स दैट पेशेंट की आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज कैल्सिफाइड हो गई है। अब पेशेंट को कभी भी एमआई हो सकता है, बिकॉज अब उसकी आर्टरीज कैपेबल नहीं है कि डायलेट होके ब्लड सप्लाई पहुंचा सके। अब वो डायलेट नहीं हो सकती, कैल्सिफाइड हो गई है ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन। सो अब पेशेंट को एमआई का रिस्क 100% है। सो हमें प्रॉपर इंटेंसिव प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, बिकॉज अब इस रिस्क 100% श्योर पेशेंट को एमआई हो सकता है अगर अभी हमने कुछ नहीं किया। सो उसकी सर्जरी कर सकते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट, कुछ भी हमें करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Yes or no? Online students? No, ma'am. Okay. So let's start with cardiac catheterization. Cardiac catheterization मतलब हम उसको क्या बोलते हैं? Yes. Online students, what is cardiac catheterization? Catheter आपने जियोग्राफी Yes, कोरोनरी एंजियोग्राफी, हम कॉमनली उसको ये बोलते हैं, कैथेटर इंसर्ट करके डाई इंसर्ट करेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन चेक करेंगे। सो कोरोनरी एंजियोग्राफी, cardiac catheterization, all these names are same. So it is an invasive test involving insertion of a catheter into the heart surrounding वेसल्स। सो हम एक कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं हार्ट की जो सराउंडिंग वेसल्स है वहां तक, एंड चेक करेंगे कि सर्कुलेशन कैसा है। इट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट चैम्बर्स एंड वाल्व्स इन कोरोनरी सर्कुलेशन। यस, हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हार्ट के चैम्बर्स कैसे हैं वो भी देख सकते हैं। देन वाल्व्स कैसे हैं, स्टेनोसिस है, रीगर्जिटेशन है, क्या है,
कोरोनरी सर्कुलेशन डाई इंसर्ट करके वो भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत चीजें कर सकते हैं कैथेटराइजेशन से। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलना है, पेशेंट की कंसेंट हो, दैट इज वी हैव टू मेक श्योर। देन assess for allergies of seafood, iodine और opaque dyes। डाई इंसर्ट करने वाले हैं तो पेशेंट की एलर्जी खास चेक कर लेनी है हमें कि पेशेंट को किसी एलर्जी है या नहीं। इफ द क्लाइंट मे बी प्री मेडिकेटेड, if allergic, the client may be pre-medicated with antihistamines and corticosteroids to prevent a reaction। पेशेंट ने बोला कि उसको एलर्जी है तो फिर हमें टेस्ट तो करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटीहिस्टामाइन दे देंगे सो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ना हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे तो इम्यूनिटी डाउन हो जाए तो वो भी रिएक्ट ना करे। सो अल्टीमेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। Withhold solid foods for 6 to 8 hours and liquid for 4 hours as prescribed to prevent vomiting and aspiration during procedure। Yes, ऐसी प्रोसीजर्स में हम एनपीओ करते हैं वरना एस्पिरेशन हो जाएगा। तो खाना पीना 6 से 8 घंटे पहले, बट पानी 4 घंटे पहले बंद कर सकते हैं। तो एनपीओ फॉर श्योर हम 4 आवर्स पहले कर सकते हैं। Document the client height and weight because this data will be needed to determine the amount of dye to administer। height and weight के अकॉर्डिंग हम डोज डिसाइड करते हैं कि कितनी डाई इंसर्ट करनी है। सो हमारा काम डोज डिसाइड करना नहीं है, हमारा काम हाइट वेट लेना है। उसके ऊपर से डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको डोज प्रिपेयर करके देंगे। Document baseline vitals and note the quality and presence of peripheral pulses for post procedure comparison। yes, baseline vitals देने हैं, मतलब प्रोसीजर से पहले पेशेंट के वाइटल्स क्या थे तो हम लेटर ऑन कंपैरिजन कर सके। सो बेसलाइन वाइटल्स लेने हैं, पेरिफेरल पल्स लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ यूज करने वाले हैं एंटी वाइटल या कुछ भी, तो यहाँ पर पल्सेस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, पल्स रेट कैसा है। पैर में फीमोरल यूज करने वाले तो पैर की पैडल लास्ट में पल्सेस कैसी है, सो वो चेक करना है बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर कंपैरिजन के लिए। Inform the client that local anesthetic will be administered before catheter insertion। वहां पर आपको लोकल एनेस्थेशिया दिया जाएगा। कंप्लीटली पेशेंट को जनरल नहीं दिया जाता, सिर्फ लोकल। पेशेंट अवेक होता है, उसको पता हो रहा है कि क्या हो रहा है, बस पेशेंट पेन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इन्फॉर्म द क्लाइंट, यू कैन सी द इमेज। यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है एक फीमोरल वेन एंड डायरेक्टली एंटीक्यूबाइटल फोसा से हमने इंसर्ट किया है सीधा। जो सुपीरियर वीना के बाकी जो ब्रेकियल वेन है, जो ब्रांच निकल रही है, वहां पर हमने इंसर्ट किया है। दोनों में से कोई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके जब कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी होगी तब वेन में नहीं, आर्टरी में करेंगे, बिकॉज हमें अओर्टा में इंसर्ट करना है, नॉट इन द एट्रियम। यहाँ पर जो इंसर्शन है वो हम वाल्व देखने के लिए कर सकते हैं, इफ वी वांट टू सी द ट्राइकस्पिड वाल्व। सो एसवी सुपीरियर वीना के और इंफीरियर वीना के वजह से सीधा एट्रियम में जाएंगे, वाल्व देख सकते हैं। बट हमें कोरोनरी सर्कुलेशन देखना है तो वेन से होके कोरोनरी सर्कुलेशन में कैसे जाएगा कैथेटर, तो हम आर्टरी में इंसर्ट करेंगे, तो सीधा वो अओर्टा में जाएगा, अओर्टा में से कोरोनरी आर्टरी के ब्रांच में चला जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट हम वेन या आर्टरी पंचर करेंगे। Inform the client that they may feel a fluttery feeling as the catheter passes through the heart। जैसे कैथेटर हार्ट में आएगा पेशेंट को फ्लटरी फीलिंग आएगा, लाइक हार्ट में कुछ हो रहा है ऐसा फीलिंग आएगा, पाल्पिटेशन जैसा होगा जैसे ही कैथेटर हार्ट में पहुंचेगा। एंड अ फ्लश्ड एंड वार्म फीलिंग व्हेन द डाई इज इंजेक्टेड, अ डिजायर टू कॉफ, पाल्पिटेशन कॉज्ड बाय हार्ट इरिटेबिलिटी। ओके जैसे ही कैथेटर पहुंचेगा पेशेंट को फ्लटरी फीलिंग आएगी। फिर कैथेटर हमारी डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच गया है, कोरोनरी आर्टरी के जस्ट एज पर है। नाउ वी वांट टू इंसर्ट अ डाई। तो जैसे ही हम डाई इंजेक्ट करेंगे पेशेंट को फ्लश्ड फीलिंग होगा, ऐसा लगेगा कि सर्कुलेशन बढ़ गया है। कॉफिंग का पेशेंट को सेंसेशन आएगा कि उसको खांसी आ रही है, एंड पाल्पिटेशंस फील होंगे बिकॉज हार्ट लिटिल बिट इरिटेशंस होता है। द इंसर्शन साइट इज प्रिपेयर्ड by shaving or clipping the hair and cleaning with an antiseptic solution। जहां से भी हमें कैथेटर इंसर्ट करना होता है। एंजियोग्राफी में हम फीमोरल साइड भी क्लीन करते हैं, एंटीक्यूबाइटल भी करते हैं, ब्रेकियल भी करते हैं। व्हाट इफ अगर ये साइड्स नहीं आई और हमें फीमोरल एक्सेस करना होगा तो तब हम क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो पहले से ही सारी साइड क्लीन करके रखनी होती है, शेविंग करना होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो बीटाडीन हम लगाते हैं वो सब क्लीन करना होगा। एडमिनिस्टर प्री प्रोसीजर मेडिकेशन सच एज सीडेटिव्स इफ प्रिस्क्राइब्ड। एंटीबायोटिक दे सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक, एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशंस दे सकते हैं अगर क्लाइंट को है डिसरिथमिया का प्रॉब्लम। सो जो भी प्री प्रोसीजर मेडिकेशंस है, सीडेटिव्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी डिसरिथमिक्स है, सब हम दे सकते हैं प्री प्रोसीजर। इंसर्ट एन आईवी लाइन इफ प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आईवी लाइन भी लेना है मेडिसिन, अगर पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर कुछ इमरजेंसी हो गई तो फिर मेडिसिन दोगे कहाँ से। सो आईवी लाइन भी हम लेकर रखेंगे सो इमरजेंसी में दे सके। तो अगर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने तो आईवी लाइन भी ले लेनी है प्री प्रोसीजर।
प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले. दिस इज अ रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर. इफ अ क्लाइंट टेकिंग मेटफॉर्मिन is scheduled to undergo a procedure requiring the administration of iodine dye, the metformin is withheld for 24 hours prior to the procedure because of risk of lactic acidosis. हमने आगे भी स्टडी किया था, कौन से चैप्टर में स्टडी किया था? मेटफॉर्मिन वाला एंडोक्राइन में स्टडी किया था, पहले आया था. ओके, ये चीज ध्यान रखनी है. मेटफॉर्मिन जब भी डाई वाली प्रोसीजर करनी होती है तब मेटफॉर्मिन विथहोल्ड करनी पड़ती है, एंड इमीडिएटली आफ्टर पोस्ट प्रोसीजर हम नहीं दे सकते, बिकॉज रिस्क क्या है? मेटफॉर्मिन डाई के साथ रिएक्ट करेगा, एंड ऊपर से अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं पी रहा है, तो फिर वो सब कुछ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू दैट लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा पेशेंट को. दैट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट. सो ये चीज ध्यान रखनी है. जो भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर आपको डाई वाली कोई भी प्रोसीजर करनी है तो मेटफॉर्मिन बंद करना होगा 24 आवर्स पहले, एंड इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर भी आप नहीं दे सकते. देखो अभी आगे देखते हैं. द मेडिकेशन इज नॉट रेज्यूम्ड until prescribed by PSCP, usually 48 hours after the procedure or after the renal function studies are done and the results are evaluated. जब तक प्रोसीजर चलो खत्म हो गई, अब पेशेंट को मेटफॉर्मिन दे देता है, नो, 48 आवर्स तक तो आप नहीं दे सकते. एंड आपने रीनल फंक्शन टेस्ट किया, मतलब किडनी फंक्शन कैसा है, अच्छे से डाई सारी निकल गई कि नहीं, बिकॉज 48 आवर्स तक हम वेट करेंगे दैट डाई कंप्लीटली कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी, फिर हम मेटफॉर्मिन देंगे, वरना रिएक्शन होके लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा. दिस इज सो इंपॉर्टेंट, इस पर से क्वेश्चंस आते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डाई एंड मेटफॉर्मिन आप कभी भी साथ में नहीं दे सकते, गलती से भी नहीं दे सकते. ओके, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशंस. अब प्रोसीजर खत्म हो गई है, उसके बाद क्या करना है? मॉनिटर वाइटल साइंस एंड कार्डियक रिदम फॉर डिसरिथमियास एटलीस्ट एवरी 30 मिनट्स फॉर 2 आवर्स इनिशियली. हमने हार्ट में कुछ प्रोसीजर की है तो डिसरिथमियास होने का रिस्क है, सो वाइटल्स लेने हैं, डिसरिथमियास ना हो, इसीलिए पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे रखा जाता है कि डिसरिथमियास ना हो. एवरी 30 मिनट्स हम 2 घंटे के लिए, सो 4 बार हम चेक करेंगे डिसरिथमियास है या नहीं. Assess for chest pain. If these arrhythmias or chest pain occur, notify the PSCP. Chest pain के लिए भी चेक करना है, अगर chest pain हो रहा है तो immediately PSCP को notify करना है. Dysrhythmias भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो भी PSCP को notify करना है. Monitor peripheral pulse and color, warmth and sensation of the extremities distal to the insertion site at least every 30 minutes for 2 hours initially. जहां पर हमने पंचर किया है उससे दूर डिस्टेंस पल्स चेक करेंगे, पेरिफेरल पल्स आ रही है कि नहीं. जनरली जब हम आर्टरी पंचर करते हैं तब सर्कुलेशन इंपेयर्ड हो सकता है, वेन में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर हमने एंजियोग्राफी किया है, आर्टरी पंचर किया है, तो पॉसिबिलिटीज है कि आगे सर्कुलेशन इंपेयर्ड हो जाए. सो पेशेंट की पेरिफेरल पल्स चेक करनी है. अगर सर्कुलेशन इंपेयर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सट्रीमिटी स्कूल पेल हो जाएगी. सो एक्सट्रीमिटी का कलर कैसा है, वार्मथ है या नहीं, सेंसेशन आ रहे हैं या नहीं, वो सब हमें चेक करना है जहां पर पंचर किया है उससे दूर, एंड एवरी 30 मिनट्स करना होगा ये सब. Notify the PSCP if the client reports numbness and tingling sensation. अगर पेशेंट को पैरेस्थेशिया है, numbness and tingling sensation हो रहा है, तो फिर this is not good. It indicates neurovascular, specifically neuro कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. सो न्यूरोवेस्कुलर, न्यूरो मतलब नर्वस कॉम्प्रोमाइज हो गया, वेस्कुलर सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया. सो ये चीज खास मॉनिटर करनी है. इफ द एक्सट्रीमिटी बिकम्स कूल, पेल एंड साइनोटिक, और इफ लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्सेस अकर, ये वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो गया. सो न्यूरो एंड वेस्कुलर दोनों का कॉम्प्रोमाइज हमें चेक करना है. वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो जहां पर इंसर्शन किया था उससे दूर की जो एक्सट्रीमिटी है वो एकदम ठंडी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगी, या तो पेरिफेरल पल्सेस कम हो जाएगी, डिमिनिश्ड या एब्सेंट हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी. सो ये कुछ भी होता है हमें पीएससीपी को नोटिफाई करना होगा. दिस कुड इंडिकेट क्लॉट फॉर्मेशन एंड इट इज एन इमरजेंसी. वो ब्लॉकेज हो गया है, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, सो दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन. Apply a sandbag or compression device if prescribed to the insertion site to provide additional pressure if required. What if हमने आर्टरी पंचर किया है, राइट? सो आर्टरी पंचर के बाद हमें प्रेशर ज्यादा रखना पड़ता है बिकॉज आर्टरी में पल्सेटिंग ब्लड फ्लो होता है, सो वो इजीली बाहर निकल जाएगा. सो पेशेंट को सैंडबैग या कुछ भी कंप्रेशन डिवाइस हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमने इंसर्ट किया था कैथेटर. Monitor for bleeding. If bleeding occurs, apply manual pressure immediately and notify the PHCP. चलो पेशेंट आप देख रहे थे प्रोसीजर के बाद, अभी तक ठीक था और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया. सो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या करोगे? मैन्युअली, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हाथ दबा दो,
आपका हाथ रख के मैन्युअली प्रेशर अप्लाई कर दो, इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करो। जब तक कोई आ नहीं जाता, यू कैन नॉट रिलीज दैट प्रेशर, आपको प्रेशर अप्लाई करके रखना है। मॉनिटर फॉर हीमेटोमा, इफ हीमेटोमा डेवलप्स नोटिफाई द पीएचसीपी। हीमेटोमा मतलब जो ब्लड कलेक्शन हो जाता है सराउंडिंग टिश्यूज में, उसको हम हीमेटोमा बोलते हैं। सो ब्लीडिंग हो रहा है बट वो बाहर नहीं आ रहा है, अंदर सीप होके वहां पर कलेक्ट हो गया। सो हीमेटोमा भी हो रहा है, दैट इंडिकेट्स ब्लड लॉस। सिंपली इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, बट वो है तो ब्लड लॉस ही। सो अगर हीमेटोमा भी डेवलप होता है कहीं पे भी, फीमोरल साइट या एंटीक्यूबाइटल ब्रेकियल कहीं पे भी, तो भी पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा। If the PHCP uses a vascular closure device to seal the arterial puncture site, there is no need for prolonged compression or bed rest. The client may be out of bed in 1 to 2 hours according to manufacturing recommendations for the product use. ऐसे डिवाइस आते हैं, मतलब जस्ट सिंपल देखो, ये आईवी कैन्यूला है तो ओपन रखोगे तो ब्लड फ्लो निकल गया, बट उसके ऊपर कैप कर दोगे तो फिर ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। सो वैसे ही एक वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस आता है, यू कैन गूगल इट। जब डॉक्टर्स पंक्चर करते हैं आर्टरी, तो डॉक्टर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर वहां पर वेस्कुलर डिवाइस क्लोजर रख देंगे। सो उससे ब्लीडिंग होगा ही नहीं, देयर विल बी नो चांस कि पेशेंट को ब्लीड होगा। सो अगर यूज किया है डॉक्टर ने ये वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस, तो फिर आपको कोई प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना कंप्रेशन अप्लाई करने की जरूरत है, ना बेड रेस्ट करवाने की इतनी ज्यादा जरूरत है। 1 से 2 घंटे में तो पेशेंट आराम से बेड से निकल सकता है। बट अगर वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस यूज नहीं किया है डॉक्टर ने, तो फिर हमें पेशेंट को बोलना है कि जो भी एक्सटेंडेड है, पैर है, हाथ है, जो भी है, उसको ऐसे स्ट्रेट रखना है। पेशेंट कैन नॉट बैंड द एक्सट्रीमिटी, उसको एक्सटेंड करके रखना है 4 से 6 घंटे तक। एंड आर्ट्रियल ऑक्लूजन ना हो जाए, इसीलिए अगर पेशेंट फोल्डेड रखेगा तो चांसेस है कि ऑक्लूजन हो सकता है, इसीलिए उसको एक्सटेंड करके रखना है। एंड स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है 6 से 12 घंटे तक। क्लोजर डिवाइस में 1 से 2 घंटे में पेशेंट आराम से बेड से निकल सकता था, बट इसमें नहीं निकल सकता पेशेंट। स्ट्रिक्ट कंपल्सरी 6 to 12 आवर्स का बेड रेस्ट हो सकता है पेशेंट का as prescribed. However, the client may turn from side to side. बेड रेस्ट है मतलब साइड टू साइड टर्न कर सकता है, बट बेड से बाहर नहीं निकलना है। डू नॉट एलिवेट द हेड ऑफ द बेड मोर देन 15 डिग्रीज। हेड भी एलिवेट नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, प्रेशर पड़ सकता है नीचे यहाँ पर आर्टरी पर। सो सील हो गया होगा तो भी अचानक से वो ब्लीड कर सकता है। सो इसीलिए हेड ऑफ द बेड एलिवेट नहीं करना है। इफ द एंटीक्यूबाइटल वेसल वाज यूज्ड, इमोबिलाइज आर्म विथ एन आर्म बोर्ड। अगर ये एंटीक्यूबाइटल फॉसा की जगह से हमने पंचर किया है, सो चांसेस है कि पेशेंट ऐसे नहीं रख पाएगा स्ट्रेट। तो व्हाट वी कैन डू, आर्म बोर्ड यूज करेंगे तो पेशेंट यहाँ से मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। हाथ मूव हो पाएगा बट यहाँ से बेंड नहीं कर पाएगा। सो आर्म बोर्ड हम यूज कर सकते हैं। Encourage fluid intake if not contraindicated to promote the renal excretion of dye and to replace the fluid loss caused by osmotic diuretic effect of dye. Okay, डाई को निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि पानी ज्यादा पियो। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, हार्ट फेलियर है तो पानी भी नहीं पिला सकते, राइट। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो पानी ज्यादा पिलाना है कि जिससे डाई निकल जाए। एंड समटाइम्स वो डाई की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक डायूरेसिस होता है, ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होता है। सो शायद पेशेंट हार्ट का पेशेंट है तो फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगा, डिसरिथमियाज हो जाएंगे, हाइपोटेंशन हो जाए। तो अगर डायूरेटिक इफेक्ट की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फिर रिप्लेस करना होगा। सो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है। मॉनिटर फॉर नोजिया, वॉमिटिंग, रैश एंड अदर साइंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द डाई। डाई का एलर्जिक रिएक्शन हुआ कि नहीं वो भी हमें मॉनिटर करना होगा। सो नोजिया, वॉमिटिंग, रैश, प्रूरिटस, सब कुछ जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं वो हमें चेक करने हैं। सो दिस इज अबाउट कार्डियक कैथेटराइजेशन, और उसमें हमने एंजियोग्राफी स्टडी किया है। लास्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसा था, तो ये इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी है। मतलब वी आर अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब वी आर डूइंग यूएसजी, सोनोग्राफी कर रहे हैं, बट कहाँ से कैसे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वेसल्स के अंदर, मतलब स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी में हमने कैथेटर डाला है। वो कैथेटर पर कैमरा तो है बट साथ साथ में यूएसजी का भी प्रोब है, ट्रांसड्यूसर भी है। सो वो अंदर से, वेसल के अंदर से सोनोग्राफी लेगा। हम आइडियली बाहर से लेते हैं, वैसे जैसे हमने एंडोस्कोपी सोनोग्राफी देखा था तो वो
जो फाइबर ऑप्टिक स्कोप था उसके साथ साथ सोनोग्राफी भी हो रही थी। तो ये भी जो पतला हम कैथेटर आर्टरी में से पूरा हम अओर्टा में से कोरोनरी आर्टरी में डाल रहे हैं, तो उसके साथ साथ यूएसजी भी हो रही है वेसल्स की, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी। अंडरस्टूड व्हाट इज आईवीयूएस? यस और नो? ओके, सो अ कैथेटर विथ अ ट्रांसड्यूसर, जब भी ट्रांसड्यूसर की बात हो मतलब वो सोनोग्राफी की बात हो रही है। सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है आपने देखा होगा, जो प्रोब्स होते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। सो अ कैथेटर विथ अ ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड as an alternative to injecting a dye into coronary arteries and detect a plague distribution. Okay, we cannot insert a dye, पेशेंट में डाई इंसर्ट नहीं कर सकते एंड वी वांट टू सी कि कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग है कि नहीं, तो फिर हम ये यूज कर सकते हैं कि जो कैथेटर है उसमें आगे ट्रांसड्यूसर भी होगा। सो जो सोनोग्राफी भी करेगा आर्टरीज की, तो हमें पता चल जाएगा कि प्लेग है तो कितना है कैसा है वो सब हमें पता चल जाएगा। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स द आर्टीरियल डाइसेक्शन and the degree of stenosis or occluded artery. Dissected artery, dissected मतलब dissection, बायोलॉजी में डाइसेक्शन नहीं किया है, डिसेक्शन डाइसेक्शन जो भी बोलते हो आप 12th में लैब में, डिसेक्शन बॉक्स। हाँ, सो व्हाट इज आर्टीरियल डाइसेक्शन? डिटेक्ट करता है, सो ऑलरेडी इट इज डाइसेक्टेड। आर्टरी फटकर मतलब डाइसेक्ट, टूट गई है, रप्चर हो गई है, अलग हो गई है कि नहीं। एन्यूरिज्म में हम देखते थे कि कॉम्प्लिकेशन था कि एन्यूरिज्म डाइसेक्ट हो जाना मतलब वो टूट जाना, रप्चर हो जाना। सो ऐसा कुछ हो गया है तो भी हम आईवीयूएस से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डाई इंसर्ट करेंगे तो डाई पूरी लीक हो जाएगी तो पता चल जाएगा, उससे भी पता चल सकता है। फिर जो भी आर्टरी है वो कितनी स्टेनोस हो गई है, स्टेनोस मतलब कॉन्ट्रैक्ट, छोटी हो गई है, नैरो हो गई है, तो कितनी नैरो हो गई है, कितनी हद तक ऑक्लूजन है, वो भी हमें आईवीयूएस से पता चल सकता है। गॉट इट? ओके, सो यहाँ पर सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। कुछ ऐसी हार्ट की कोई भी कंडीशन जिसमें हम कुछ थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं हार्ट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, वो हम देखेंगे आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। Yes, ma'am. Okay, so let's start with the therapeutic management that we can do in any heart conditions. So any मतलब specifically coronary heart problems है तो हम कौन सी therapeutic management कर सकते हैं? So first therapeutic management is PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty. What do you mean by this? What do you mean by this PTCA? एंजियोग्राफी करने के बाद आपने देखा होगा कि आफ्टर डूइंग एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोग्राफी हम विजुअलाइज करते हैं, एंजियोप्लास्टी में जे कोई बलून कोई कसे पण मतलब स्टेन नाखीने डायरेक्ट करे છે જે બ્લડ ફ્લો है ये बराबर। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज पीटीसीए? आपने देखा होगा बलून इंसर्ट करते हैं, आपने देखा है कोरोनरी आर्टरी अगर ऑक्लूड हो गई है प्लेग फॉर्मेशन की वजह से, तो डॉक्टर वहां पर बलून इंसर्ट कर देंगे, फिर वो डायलेट हो जाएगी। ये पीटीसीए माइनर ब्लॉकेजेस में किया जाता है, बिकॉज मेजर ब्लॉकेजेस हो गए तो बलून भी काम नहीं करेगा। बट पीटीसीए बहुत सारी है, हम कर सकते हैं, लाइक स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं, बलून इंसर्शन कर सकते हैं। सो हम सारी एक एक करके देखेंगे। बट पीटीसीए मीन्स डॉक्टर्स जो कैथेटर इंसर्ट किया है उसके साथ साथ बलून होता है। कैथेटर ऐसा होता है, आपने यूरिन का फॉलिस कैथेटर देखा होगा, उसके टिप पर ही बलून होता है, बट इन्फ्लेट करके डिफ्लेट होता है तब पता नहीं चलता कि बलून है। सो वो कैथेटर भी
जो पीटीसीए का कैथेटर होता है वो ऐसा होता है, ऐसा कैथेटर, एंड यहाँ पर ऐसे बलून होगा, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफ्लेटेड। जब हम कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करेंगे तब वो बलून ऐसे डिफ्लेट होगा और पूरा फूल जाएगा। तो आइडियली उसके ऊपर ही होता है, बट आप देख नहीं पाते हो, जब हम अंदर इंसर्ट करेंगे फिर वो बलून इन्फ्लेट होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज पीटीसीए। इन शॉर्ट वी आर ट्रीटिंग दैट प्लेग, कोरोनरी आर्टरी में जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द पीटीसीए. So it is an invasive non-surgical technique in which one or more coronary arteries are dilated with a balloon catheter to open the vessel lumen and improve the arterial blood flow. So ये एक invasive है, surgical procedure नहीं है, एक invasive procedure है। सिर्फ हम कुछ भी सर्जरी नहीं कर रहे, सिंपली एक इंसिजन करके जो कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैथेटर इंसर्ट करते थे वो ही। समटाइम्स एक ही पेशेंट पर एक ही बेड पर दो कैथेटर पहले इंसर्ट किया, ब्लॉकेज देख लिया, वापस से इंसर्ट करके बलून एंजियोप्लास्टी कर देंगे। सो एक ही टाइम पर हम ये कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर, इट इज ओनली अ थेराप्यूटिक प्रोसीजर, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज को हम डायलेट करते हैं वाया अ बलून कैथेटर, जिससे वो वेसल है जो प्लेग की वजह से नैरो हो गई थी वो ओपन हो जाएगी एंड एट्रियल ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। यू कैन सी हियर इन दिस फिगर 53.3 कि आप देख रहे हो कि पहले ये जो बाहर से दिख रहा है कि ऐसे हमने आर्टरी में से इंसर्ट किया, चलो एंजियोग्राफी एंड प्लास्टिक दोनों साथ में किया है, तो पहले डॉक्टर्स कैथेटर ऐसे आर्टरी में से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लाकर पेशेंट छोड़ देंगे, फिर डाई इंजेक्ट करेंगे। डाई जहां जहां जा सकती है, मतलब वहां पर सर्कुलेशन अच्छा है, यहाँ पर दिखा कि ब्लॉकेज है, फिर डॉक्टर ने वो वाला कैथेटर निकाल दिया, फिर से दूसरा कैथेटर इंसर्ट किया जो बलून वाला होगा, ऐसे ऊपर बलून होगा। सो ये जूम करके दिखाया है कि ये प्लेग फॉर्मेशन है, कैथेटर वहां पर गया, अब जाने के बाद ये देखो ये बलून है जो डिफ्लेटेड है और ये इन्फ्लेटेड बलून है। सो बलून वहां पर जाएगा जहां पर प्लेग है, एंड फिर वहां पर जाके वो डायलेट कर देगा। सो देखो ये ऐसा था, अब ये उसका जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड हो गया, सो इजीली ब्लड वहां से निकल सकता है। हमने प्लेग को रिमूव नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आर्टरी को डायमीटर उसका अच्छे से वापस से नॉर्मल कर दिया है। सो दिस इज पीटीसीए। ओके, है चांसेस, अगर पेशेंट अभी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो ये किया हुआ भी वेस्ट जाएगा। लो फैट डाइट, समटाइम्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी रिस्क है, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करे तो रिस्क ज्यादा है, बिकॉज वी आर नॉट रिमूविंग द प्लेग, प्लेग तो वहां पर ही है। व्हाट इफ वो ग्रो हो जाए, ज्यादा हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो, तो फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, सो ये रिस्की है। सो इसीलिए डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि बलून वाली नहीं करते, स्टेंट ही रखते हैं, बट दिस इज अ प्रोसीजर विच कैन बी डन इन माइनर प्लेग फॉर्मेशन. Okay, so PTC may be used for the client with an evolving MI alone or in combination with medication to achieve reperfusion. Okay, PTC कौन से पेशेंट में यूज किया जाता है जिसका इवॉल्विंग एमआई, इवॉल्विंग एमआई मतलब प्लेग फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो हम अगर पहले से ही कर देंगे तो एटलीस्ट ओपन रहेगा, बट उसको पेशेंट को मेडिसिन भी लेनी होगी, बिकॉज प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज समथिंग इन्फ्लामेटरी कंडीशन फॉर अवर बॉडी। सो जहां पर भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, वहां पर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जाके उसको क्लीन करना ट्राई करेंगे, और प्लेटलेट वहां पर जाके अकोमोडेट हो गई तो इट विल क्रिएट अ क्लॉट, सो दैट इज नॉट गुड, उससे तो ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा। सो पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ेगी रेगुलरली. द क्लाइंट कैन एक्सपीरियंस रीऑक्लूजन आफ्टर द प्रोसीजर, thus the procedure may need to be repeated. जरूरी नहीं है कि एक बार हमने पीटीसी केयर दिया मतलब लाइफ टाइम पेशेंट को गारंटी अब वापस नहीं होगा, बिकॉज प्लेग तो वहां पर है, सो फिर से रीऑक्लूजन हो सकता है, तो फिर से हमें ये प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ सकती है. कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड आर्ट्रियल डिसेक्शन. यस, अगर ये पीटीसीए यूज करे तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बलून ज्यादा आपने इन्फ्लेट कर दिया तो वो आर्टरी फट सकती है, डाइसेक्शन और रप्चर हो सकता है. एम्बोलाइजेशन ऑफ प्लेग फ्रेगमेंट्स, स्पाज्म एंड एक्यूट एमआई. आप बलून इंसर्ट कर रहे थे, बलून डिफ्लेट कर रहे थे और प्लेग का टुकड़ा मतलब टूट गया, तो फिर वो एम्बोलाइजेशन हो सकता है, मतलब फ्री फ्लोटिंग हो गया, अब लंग्स में जाकर स्टक हो जाएगा. सो एम्बोलाइजेशन हो सकता है, फ्रेगमेंट्स टूटकर, या तो स्पाज्म हो सकते हैं, वेसल स्पाज्म हो जाएगी इरिटेशन की वजह से, तो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी एंड फिर एमआई हो जाएगा, पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा. सो ये कॉम्प्लिकेशन है उसकी. Firm commitment is needed on the client's part to stop smoking.
पीटीसीए के बाद पेशेंट को कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को स्मोकिंग बंद करना होगा, डाइट रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे, वेट लूज करना होगा, एक्सरसाइज पैटर्न ऑल्टर करनी होगी, एंड ऐसे कोई बिहेवियर जिसकी वजह से आर्टरी ऑक्लूजन वापस से हो सके वो सब कुछ छोड़ना होगा स्ट्रिक्टली। अगर पेशेंट ने कुछ भी मिस्टेक की तो वापस से ऑक्लूजन हो गया। सो पेशेंट की साइड से कमिटमेंट बहुत फर्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए। देन पीटीसीए की प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस क्या है? सिमिलर टू द प्रोसीजर इंटरवेंशंस फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन, सेम है, सिर्फ कैथेटर अलग है, एक में बलून है, एक में कुछ नहीं था। So same होगा pre procedure. The PHCP may prescribe pre procedure medication including aspirin, that is called as acetyl salicylic acid. So platelet aggregation ना हो वहां पर ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, हम डॉक्टर्स क्या करेंगे? प्री प्रोसीजर से पहले ही एस्पिरिन दे देंगे। Instruct the client that chest pain may occur during balloon inflation and to report it if does occur. Okay, पेशेंट को बोलना है पहले से, प्रोसीजर से पहले ही हम बोल देंगे कि जब बलून इन्फ्लेट किया जाएगा तब आपको थोड़ा चेस्ट पेन होगा। सो आपको होता है तो रिपोर्ट करना है कि हाँ हुआ, सो डॉक्टर को पता चले कि हाँ हो रहा है। सो ये पेशेंट को आप पहले से ही सिखा दोगे। आफ्टर प्रोसीजर क्या ध्यान रखना है? सो वो भी सेम होगी। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद जो हम इंटरवेंशन लेते हैं सेम लेनी है। एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट हम देंगे बिकॉज वी डोंट वांट दैट थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो, बिकॉज हमने कुछ प्रोसीजर किया है, दैट इज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, प्लेटलेट एग्रीवेट हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। सो आफ्टर प्रोसीजर भी एंटीकोएगुलेंट या एंटीप्लेटलेट हमें देना होगा। IV NTG नाइट्रोग्लिसरीन may be prescribed to prevent the coronary artery vasospasm. हमने देखा था कि जब हम कुछ छेड़खानी करते हैं तो वो स्पाज्म हो जाता है, राइट? सो अगर स्पाज्म हो गया तो फिर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा एंड हार्ट अटैक आ जाएगा। सो पेशेंट को आफ्टर प्रोसीजर एनटीजी दिया जाता है जो वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। Encourage fluids if not contraindicated to enhance the renal excretion of dye. क्यों डाई? बिकॉज पहले डॉक्टर देखेंगे ब्लॉकेज कहाँ है, फिर बलून वहां पर जाके इंफ्लेट करेंगे। सो डाई इंसर्ट की होगी तो पानी ज्यादा पिलाना है। Instruct the client in the administration of prescribed medicines. Daily acetyl salicylic acid may be prescribed. Yes, आपने देखा होगा कोई पेशेंट है जिसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, पीटीसीए करवाया है, तो पेशेंट रेगुलरली एस्पिरिन लेता होगा बिकॉज एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट है, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा, एटलीस्ट क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, इसीलिए रेगुलर डेली उसको लेना होगा। सो ये पेशेंट को समझाना होगा आफ्टर प्रोसीजर। असिस्ट द क्लाइंट विद प्लानिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे, लो फैट डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग स्टॉप करना है, तो वो सब आपको प्लानिंग करके देना होगा, हेल्प करना होगा इन शॉर्ट। सो दैट इज अबाउट बलून एंजियोप्लास्टी पीटीसीए। दूसरी मेथड है, दूसरी थेराप्यूटिक प्रोसीजर है लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी। सो नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है दैट वी आर यूजिंग समथिंग लेजर लाइट, लेजर का यूज करने वाले हैं। सो अ लेजर प्रोब इज एडवांस्ड टू अ कैन्युला सिमिलर टू दैट यूज्ड फॉर पीटीसी। जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में सेम करते हैं वैसे एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। अब कैथेटर में बलून नहीं है, लेजर वाला कैथेटर है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होंगे। सो कैथेटर ऐसा होगा, इफ यू वांट टू गूगल इट आप गूगल कर सकते हो। बलून वाला कैसा था? ऐसा कैथेटर था, उसके ऊपर ऐसे बलून था, राइट? क्या ये जो लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी वाला कैथेटर कैसा होगा? कैथेटर की टिप पर ऐसे लेजर लाइट निकलेगी जो वो बर्न कर देगी प्लेग को। सो कैथेटर डिफरेंट टाइप का है सिर्फ। सो लेजर प्रोब वाला हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे जैसे पीटीसीए में करते थे वैसे। इट इज यूज्ड फॉर क्लाइंट विद स्मॉल ऑक्लूजन इन कोरोनरी आर्टरीज, also the distal superficial femoral proximal popliteal common iliac arteries. ओके, ये प्रोसीजर जब छोटे छोटे ऑक्लूजन है, बड़ा प्लेग है तो इससे इतना जल्दी वेपराइज नहीं होगा। एंड व्हाट इफ अगर वो फ्रेगमेंट्स छूट गए, सो छोटा छोटा ऑक्लूजन है तब हम ये यूज कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन हो, तो फीमोरल आर्टरी में है, पॉप्लिटियल लाइक नी के पीछे, इलियाक आर्टरी में भी ऑक्लूजन है, तब भी हम ये यूज कर सकते हैं। ये सिंपली जो क्लॉट है, जो भी ऑक्लूजन है उसको वेपराइज कर देता है। Heat from the laser vaporize the plaque to open the occluded artery. ये जो लेजर है उसमें से जो बीम्स निकलती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो भी प्लेग है, जो भी क्लॉट है, वो वेपराइज हो जाएगी, टूटेगी नहीं, टूटेगी तो फिर एम्बोलस हो जाएगा। सो इट डजंट ब्रेक इट,
इट कंप्लीटली वेपराइज, वो पूरी भाप बन के वेपराइज हो जाती है। प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर सिमिलर है, पीटीसीए में जैसा करते थे वैसा ही सेम, बिकॉज प्रोसीजर सेम है, सिर्फ कैथेटर डिफरेंट टाइप का है, सो सब वो सेम होगा। वी हैव टू मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोरोनरी डाइसेक्शन हो सकता है, एक्यूट ऑक्लूजन हो सकता है, परफोरेशन होल क्रिएट हो सकता है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है, अगर बड़ी है तो वेपराइज नहीं हुई तो फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे तो एम्बोलिज्म हो सकता है, एंड एमआई भी हो सकता है। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी। ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट ऑक्लूजन हम करने गए थे हैं बट उससे हो गया वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ एंड कंप्लीटली स्पाज्म की वजह से ऑक्लूजन हो गया, ऑक्लूजन हो जाएगा तो फिर एमआई हो जाएगा पेशेंट को। देन नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। ये भी सेम प्रोसीजर है पीटीसीए में, बट इसमें क्या होगा, स्टेंट होगा। अब हम एक, आपने देखा होगा जो पेन आती है जो हम क्लिक वाली पेन होती है, तो उसमें आगे रिफिल के आगे स्प्रिंग कैसी होती है, स्टेंट इतना छोटा होता है, अगर आपने रियल में देखा होगा तो पता होगा, और वो डायलेट हो सकता है। सो जो बलून वाला कैथेटर था वही कैथेटर इसमें सेम यूज होगा, बट वो बलून के ऊपर स्टेंट भी होगा, एंड जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे वो बलून के साथ साथ स्टेंट भी इन्फ्लेट हो जाएगा, एंड फिर हम वापस से बलून को डिफ्लेट करके निकालेंगे, सो स्टेंट वहां पर ही रहेगा, एंड बलून वाला कैथेटर हमने निकाल दिया। सो coronary artery stents are used with PTCA to provide a supportive scaffold to eliminate the risk of acute coronary vessel closure and to improve the long term patency of vessel। सिर्फ बलून एंजियोप्लास्टी में क्या होता था, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रहने की गारंटी नहीं थी। इसमें क्या होगा, हमने वेदर देयर इज इमेज, सो इसमें क्या होगा, हमने वेसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर बलून के साथ साथ एक ऐसे स्टेंट रख दिया है। सो कुछ भी हो जाए वो आर्टरी कंप्रेस नहीं होगी, वो डायलेटेड ओपन ही रहेगी। सो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट पेटेंसी मेंटेन तो रहेगी, ओपन तो रहेगी वो। A balloon catheter bearing a stent is inserted into the coronary artery and positioned at the site of occlusion. Balloon inflation deploys the stent. सेम जो कैथेटर ऐसा होता था बलून वाला, सेम वही कैथेटर होगा। यू कैन गूगल द इमेजेस आल्सो। कैथेटर होगा, इसके ऊपर ऐसे बलून था, उसके ऊपर ही स्टेंट भी अप्लाई किया जाता है। सो जैसे ही वो आर्टरीज में पहुंचेगा, बलून जैसे फूलेगा तो स्टेंट भी वापस से फूल जाएगा, फिर बलून को डिफ्लेट किया जाता है, कैथेटर पूरा निकाल देंगे तो स्टेंट वहां पर ही रहेगा। So same वही method use होती है। When placed in the coronary artery, the stent reopens the blocked artery। जब कोरोनरी आर्टरी में हम ये स्टेंट रखते हैं तो जो ब्लॉक था आर्टरी अब वो ओपन हो जाएगी ड्यू टू दैट स्टेंट। प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन सेम है पीटीसीए की, बिकॉज सेम हम करते हैं, सिर्फ डिवाइस हमने अलग यूज किया है। नेक्स्ट, एक्यूट थ्रोम्बोसिस इज अ मेजर कंसर्न फॉलोइंग द प्रोसीजर। यस, स्टेंट रखने के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन के रिस्क सबसे ज्यादा है, बिकॉज स्टेंट इज समथिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉर अवर हार्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट तो हमारी बॉडी कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। सोचो एक मेटालिक स्टेंट हार्ट में हो तो फिर हमारी इम्यूनिटी उसको रहने देगी, वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी आके रोज उसके साथ फाइट करेंगे। सो ड्यू टू दैट वहां पर एग्रीगेशन की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज थ्रोम्बस। सो मेटालिक स्टेंट में थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कंसर्न ज्यादा है। So the client is placed on antiplatelet therapy like clopidogrel or aspirin for several months following the procedure. Lifelong, several months नहीं, lifelong patient को clopidogrel और aspirin लेना पड़ता है कि वहां पर platelet aggregation ना हो, thrombus formation ना हो। The length of the time for the antiplatelet therapy is determined by the type of stent, whether it is metal or medication coated. दो टाइप के स्टेंट मिलते हैं, एक नॉर्मल रेगुलर स्टेंट होता है जो सिर्फ मेटल का होता है और उसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। दूसरा है मेडिकेशन कोटेड, मतलब वो स्टेंट के ऊपर ही मेडिसिन है, वो ऑटोमेटिक बॉडी में रिलीज करता रहेगा। एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन लाइक क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन वैसे मेडिकेशन होगी तो प्लेटलेट वहां पर अक्यूमुलेट नहीं होगी। सो कितने टाइम तक मेडिसिन लेनी है वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेंट डॉक्टर ने यूज किया है। मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रोसीजर सच एज स्टेंट माइग्रेशन और ऑक्लूजन। यस, अब स्टेंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, स्टेंट माइग्रेशन। अगर हमने स्टेंट रखा है जहां पर ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज यहाँ पर है, हमने स्टेंट यहाँ पर रखा, प्रेशर इंक्रीज हो गया कि कुछ हुआ तो स्टेंट मूव होके आगे चला गया, तो जहां पर स्टेंट जरूरत थी वहां तो ब्लॉकेज हो जाएगा ना, तो फिर स्टेंट माइग्रेशन हो जाएगा, या तो ऑक्लूजन हो सकता है,
कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन हो सकता है, फट सकती है, एंड ब्लीडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम एंटीकोएगुलेशन। यस, लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट लेना पड़ेगा, या तो स्टेंट में से रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी रिस्क बढ़ जाएगा। सो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट है एथीरेक्टोमी। एथीरेक्टोमी मतलब एक्टमी है, मतलब यस, एथीरो वर्ड जैसे एथीरोस्क्लेरोसिस। सो हम बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में प्लेग फॉर्मेशन हो गया, सो वी आर रिमूविंग द प्लेग, सो दैट इज कॉल्ड एज एथीरेक्टोमी। सो लेट्स स्टडी अबाउट एथीरेक्टोमी. Atherectomy removes the plague from the coronary artery by the use of cutting chamber on the inserted catheter or a rotating blade that pulverize the plague. Okay, let me show you the figure. आप ये फिगर देख रहे हो, ये कैथेटर ही है, बट कैथेटर की टिप देख रहे हो तो थोड़ी अलग है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा डिवाइस है जो गोल 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 घूमेगा। कैथेटर कैसा होता है, ये कैथेटर है, राइट? और आगे भी देखो कैथेटर की टीप है यहाँ पर। सो बीच में ये जो मशीन है, बीच में ये गोल गोल डिवाइस होता है, आगे भी कैथेटर होता है। सो ये डिवाइस क्या करेगा, गोल घूमेगा, उसकी वजह से जो प्लेग फॉर्मेशन हुआ है वो सेपरेट हो जाएगा। बट अगर ये प्लेग सेपरेट हो गया तो एम्बोलिज्म हो सकता है, राइट? सो ये जो आगे का कैथेटर क्या है, वो सक्शन क्रिएट करता है। सारा जो प्लेग सेपरेट हो रहा है ड्यू टू दैट रोटेशन मोशन, वो सक करके सारा कैथेटर में ले लेगा। सो कोई भी फ्रेगमेंट्स निकल ना जाए, सब कुछ सक होके कैथेटर में आ जाएगा, फिर कैथेटर रिमूव किया जाता है। सो कोई भी प्लेग एम्बोलस ना हो सके। सो इसीलिए ये पूरा ऐसा डिवाइस, ऐसा ही कैथेटर होता है जिसमें एक डिवाइस होगा जो पल्वेराइज मतलब छीलेगा। आपने लाइक जो कारपेंटर्स होते हैं उनको देखा है कि कैसे छीलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो सेम वो फ्रिक्शन की वजह से पूरा प्लेग सेपरेट हो जाएगा, एंड आगे जो है उससे सक्शन होके सारा जो प्लेग सेपरेट हुआ है वो कैथेटर के अंदर चला जाएगा। So atherectomy is also used to improve the blood flow to ischemic limbs in the individual with peripheral arterial disease. जरूरी है कि सिर्फ हार्ट में ही कर सकते हैं, पेरिफेरल वेसल्स में भी अगर क्लॉट हो गया है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो भी हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। सेम मेथड, प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर सेम पीटीसीए जैसा ही है, बिकॉज है तो कैथेटर, सिर्फ आगे की टिप्स अलग अलग हो रही है। एक में स्टेंट है, एक में बलून है, एक में लेजर प्रोब है, एक में ये पल्वराइजेशन डिवाइस है। मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन, एथीरेक्टोमी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, एम्बोलस हो सकता है। व्हाट इफ अगर सक्शन अच्छे से नहीं हुआ और एक टुकड़ा रह गया, तो एम्बोलस भी हो सकता है, एंड रीऑक्लूजन भी हो सकता है। थोड़ा प्लेग बाकी रह गया होगा, पूरा नहीं निकला है, तो वापस से रीऑक्लूजन हो जाएगा। सो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट फॉर कोरोनरी आर्टरी इज transmyocardial revascularization. What do you mean by this? ट्रांसमायोकार्डियल है, हम ऐसा वर्ड कब यूज करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल, देन ट्रांसडर्मल और ट्रांसमायोकार्डियल। सो उसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसमायोकार्डियल मतलब दिस इज एन अप्रोच, एक रास्ता है। ट्रांसमायोकार्डियल हम अप्रोच यूज कर रहे हैं टू डू द रिवेस्कुलराइजेशन। सो ट्रांसमायोकार्डियल मतलब कैसे? नो, कैथेटर इंसर्ट करेंगे, दैट इज इंट्रावेस्कुलर, वेसल्स में से कर रहे हैं, बट दिस इज अ ट्रांसमायोकार्डियल अप्रोच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब बोलो, चलो हम ऐसा देखते हैं। नॉर्मल यूएसजी करते हैं, दैट इज ट्रांस एब्डोमिनल। सो व्हाट इज ट्रांस एब्डोमिनल? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? ट्रांस एब्डोमिनल का मतलब क्या है, हमने कितनी बार स्टडी किया ये। नॉर्मल यूएसजी कैसे करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल। सो व्हाट इज ट्रांस एब्डोमिनल? तो सो जो एब्डोमेन। हाँ, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी नाम है, ट्रांस वर्ड है मतलब ऊपर से हम कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रांस मायोकार्डियल, मतलब मायोकार्डियम इज अ मायोकार्डियम लेयर लेयर। ऑफ हार्ट,
सो वी आर नॉट इंसर्टिंग एनीथिंग इनटू द वेसल्स, हम बाहर से ही सीधा मायोकार्डियम से ही अप्रोच कर रहे हैं. सो इसमें पेशेंट को इंसिजन रखेंगे, हार्ट एक्सपोज होगा एंड देन वी आर डूइंग दिस. पूरा इंसिजन नहीं रखते, स्मॉल स्मॉल, जैसे लेप्रोस्कोपी की सर्जरी कैसे होती है, होल्स करके करते हैं, सेम वैसे ही ओपनिंग क्रिएट करेंगे एंड वो कैथेटर इंसर्ट करेंगे, बट वाया ट्रांस मायोकार्डियल अप्रोच, वेसल्स में नहीं, ऊपर से अप्रोच करेंगे. एंड वी आर क्रिएटिंग रिवेस्कुलराइजेशन. मतलब रिवेस्कुलराइजेशन मतलब वेस्कुलराइजेशन मतलब सो वी आर क्रिएटिंग न्यू ब्लड वेसल्स. तो कैसे न्यू ब्लड वेसल्स क्रिएट करेंगे, लेट्स स्टडी अबाउट दिस. दिस इज अ प्रोसीजर. ये क्यों किया है, देखो कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियम को ही सप्लाई करती है. अब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, हमें तो क्या चाहिए, मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई चालू है. सो हमने क्या कर दिया, नई वेसल्स बना दी मायोकार्डियम में ही सीधा. सो ब्लड सप्लाई तो चालू रहेगा. सो लेट्स स्टडी दैट. It may be used for the clients with widespread atherosclerosis involving vessels that are too small and numerous for replacement or balloon catheterization performed through small chest incision. कोई ऐसा पेशेंट है, चलो हमने सारी प्रोसीजर, एक एक आर्टरी ऑक्लूड है तो स्टेंट रख सकता है, बलून है, लेजर है, एथेरेक्टोमी है, बहुत सारी मेथड है, तो फिर हमें ये करने की क्यों जरूरत पड़ी. एक वेसल नहीं, बहुत सारी वेसल्स. तो कितनी वेसल्स में आप करोगे, अगर एक होती ज्यादा ऑक्लूड होती तो हम बाईपास भी कर लेते, चलो, बट छोटी छोटी है एंड बहुत सारी है, तो बाईपास भी कितनी वेसल्स का करोगे, 4-5, कितनी वेसल्स का. सो इट्स बेटर टू यूज दिस मेथड. सो जब छोटी छोटी वेसल्स हो कि आप उतना आगे जा भी नहीं सकते, कैथेटर उतनी छोटी ब्रांचेस में जा भी नहीं पाएगा, एंड बहुत ज्यादा है, एक नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर में ऑक्लूजन है, तब ये मेथड यूज की जाती है. उसमें एक छोटा सा इंसिशन, या तो लाइक गाइडेड वायर्स इंसर्ट करके, लेप्रोस्कोपी में कैसा करते हैं वैसा एक छोटा इंसिजन करेंगे, या तो होल्स क्रिएट करेंगे. सो ये ऐसे होता है ये प्रोसीजर. Transmyocardial revascularization uses a high power laser that creates 20 to 24 channels through the muscle of the ventricle. Blood enters the small channel, providing the affected region of the heart with oxygenated blood. अब हो गया क्या, चलो हम अगर ऊपर से देख रहे हैं, ये पेशेंट का चेस्ट है और ये हार्ट का लेयर है, ये मायोकार्डियम लेयर है, राइट. तो हमने ऊपर से ही एक प्रोब इंसर्ट किया जो लेजर वाला था. तो लेजर की वजह से यहाँ पर ऐसे होल्स क्रिएट कर दिए हमने, मायोकार्डियम में छोटे छोटे रास्ते क्रिएट कर दिए. कितने किए, 20 to 24 चैनल्स बना दी, मतलब 20 to 24 होल्स क्रिएट कर दिए. वो लेजर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आर पार ऐसे हो गया. अब हमने होल्स क्रिएट किया है तो वहां पर ब्लड भी होगा, तो वहां पर ब्लड एंटर होगा एंड वहां पर नई नई वेसल्स सब बन जाएगी. तो हमने डायरेक्टली चैनल्स बना के नई वेसल्स क्रिएट कर दी. इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे वहां पर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. हमने नई 24 चैनल्स बना दी हार्ट के लिए. सो जो भी अफेक्टेड है रीजन, जो भी मायोकार्डियल रीजन अफेक्ट हो गया है, इस्केमिक हो गया, हमने वहां पर ऐसे पंचर्स कर दिए लेजर की वजह से, और फिर वहां पर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. द ओपनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द हार्ट हील्स. धीरे धीरे ये होल क्रिएट किए हैं हमने, तो वो ऊपर से सील हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, तो वहां पर नई वेसल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो हाउएवर द मेन चैनल रिमेन एंड परफ्यूज द मायोकार्डियम. मेन चैनल तो है, राइट, वहां से थोड़ा थोड़ा तो हो रहा था, बट ये भी हमने नई क्रिएट कर दी है, तो उससे भी नई ब्लड वेसल्स बन जाएगी वहां पर. धीरे धीरे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से वहां पर भी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो दो देयर इज अ ब्लॉकेज, हमने नया सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया. यू कैन गूगल इट, ट्रांसमायोकार्डियल रीवेस्कुलराइजेशन. आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे होल्स क्रिएट किए हैं एंड वहां पर कैसे चैनल्स फॉर्म होती है. दैट इज ऑल अबाउट इन्वेजिव प्रोसीजर्स. नेक्स्ट है दैट इज अ थेराप्यूटिक पर्पस. हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ही करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कोरोनरी आर्टरी बाईपास? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय CABG? CABG देखा है, जब कुछ रास्ता नहीं होता है, जब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होता है, तब डॉक्टर CABG करते हैं. व्हाट इज CABG? वी आर क्रिएटिंग अ बाईपास, अनदर वे. जैसे कहीं रास्ते से जा रहे हो, आगे ब्लॉकेज है कि कुछ है, तो हम नया बाईपास रोड लेकर वो इतना एरिया स्किप कर देते हैं. सो दैट इज बाईपास. यू कैन सी हियर, देखो आपको इमेज में देखने को मिलेगा ये जो हार्ट है. सोचो कि यहाँ पर
यहाँ पर ब्लॉकेज था। सो सर्जन ने क्या किया, हमारी बॉडी में से ही वेन्स और आर्टरी लेकर सीधा कोर अओर्टा से कनेक्ट करके यहाँ पर स्टिच कर दिया। सो ये जो ब्लॉकेज वाला एरिया था वो बाईपास हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई सीधा यहाँ से आगे चला जाएगा। यहाँ पर किया मतलब ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज के आगे रखना होता है बाईपास, तभी वो ब्लड आगे जा पाएगा। एंड यहाँ पर है तो मतलब ब्लॉकेज यहाँ पर होगा। सो डॉक्टर्स ने आगे रख दिया। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने एक आर्च ऑफ ऑर्टा में से जो ब्रांच निकल रही है उससे सीधा हमने वेसल्स को कनेक्ट कर दिया। सो यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज है वो स्कीप हो गया। सो ये डिपेंड करता है कितना ब्लॉकेज है, कितनी वेन्स हमें लगानी है। सो बट हम जो भी ब्लॉकेज है उसको बाईपास कर रहे हैं। So the occluded coronary arteries are bypassed with the client's own venous and arterial blood vessels. Patient की खुद की veins and arteries लेके हम bypass करते हैं। सबसे common कौन सी लेते हैं? saphenous vein, पैर में से सबसे common ली जाती है। So the saphenous vein, internal mammary artery यहाँ पर shoulder पर होती है, clavicle के आगे, चेस्ट के पीछे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ब्रेस्ट हम देखें उसके पीछे होती है। सो या तो सेफिनस वेन लेंगे या तो यहाँ से चेस्ट से मेमोरी आर्टरी लेंगे, और अदर आर्टरीज में बी यूज टू बाईपास द लीजन ऑफ इन द कोरोनरी आर्टरीज। जरूरी है कि सिर्फ ये दो, ये सबसे कॉमन है, और उससे भी कॉमन सेफिनस वेन। सेफिनस वेन इज सो कॉमन, आइडियल, सबसे इजी है पैर में से लेना, बट उसके साथ साथ इंटरनल मेमोरी या कोई भी बॉडी में से कोई भी आर्टरी कोई भी वेन डॉक्टर ले सकते हैं। Coronary artery bypass grafting is performed when the client does not respond to medical management or coronary artery disease of the coronary artery disease, or when the vessels are severely occluded. डॉक्टर ने सब ट्राई कर दिया, बलून, स्टेंट, देन मेडिसिन, बट कुछ असर नहीं कर रहा था। नो मेडिकल मैनेजमेंट वाज गिविंग अ गुड रिजल्ट। फिर सीवियरली ऑक्लूडेड था। आपने देखा होगा कि ऑक्लूजन के परसेंटेज होते हैं 80% ब्लॉक, 50% ब्लॉक। जब 100% हो, 80 से ज्यादा हो इन शॉर्ट, तब डॉक्टर सीएबीजी करते हैं। फिर स्टेंट रखने का भी कोई मतलब नहीं होता। सो जब 80% से ज्यादा ब्लॉकेज हो, सीवियरली ऑक्लूडेड हो, तब डॉक्टर सीएबीजी करते हैं। सीएबीजी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बट अभी ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी वो लीस्ट मिनिमल इन्वेजिव भी किया जा सकता है, दैट इज मिड कैप। A minimally invasive direct coronary artery bypass, that is mid-cap, may be an option for some clients who have lesion in left ascending जो artery है, LAD, left anterior descending artery. A sternal incision is not required. Usually a 2-inch left thoracotomy incision is done. A cardiopulmonary bypass is not required in this procedure. जो basic हमारी जो पुरानी प्रोसीजर थी वो कैसे थी? एक पूरा स्टर्नल इंसिजन रखते थे, 2 इंच का पूरा इंसिजन रखते थे, फिर उसको ओपन करते थे। एंड जब भी ओपन हार्ट सर्जरी करनी हो हमें, तब पेशेंट को हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पर रखते थे। व्हाट इज कार्डियोपल्मोनरी बाईपास? व्हाट इज कार्डियोपल्मोनरी बाईपास? जब भी ओपन हार्ट सर्जरी, हैव यू एवर सीन ओपन हार्ट सर्जरी? कभी देखी है? नो वन? ओके। सो जब भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, अभी हार्ट पर सर्जरी करनी होती है हमें, तो हार्ट ऐसे बीट कर रहा हुआ, तो डॉक्टर सर्जरी कैसे करता है? सो वी हैव टू स्टॉप द हार्ट। हार्ट को शॉक देकर उसको बंद किया जाता है। अगर हार्ट बंद कर दोगे तो फिर पेशेंट मर नहीं जाएगा। सो ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी पेशेंट को ऑलवेज कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पर रखा जाता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कार्डियोपल्मोनरी बाईपास क्या होगा फिर? ओनली हार्ट? Online students, tell me, we have studied this. We are not studying cardiopulmonary bypass for the first time. I have told you what is this. How you will remember the whole book? कार्डियोपल्मोनरी बाईपास एक मशीन होता है जो हार्ट का भी काम करेगा, लंग्स का भी काम करेगा। सो जब पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही होती है, जैसे डायलिसिस में कैसा हम कनेक्शन करके पूरा ब्लड निकालते हैं, सो वैसे ही पेशेंट का सारा ब्लड वो मशीन में जाएगा, वहां से प्योरीफाई भी होगा एंड पूरी बॉडी में पंप भी होगा। हार्ट का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप करना, एंड ऑक्सीजनेटेड कौन करेगा? लंग्स करेगा। सो अभी हार्ट तो बंद है, तो हार्ट में से लंग्स में भी कैसे जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। सो ये मशीन क्या करता है? बॉडी में से ब्लड लेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा एंड फिर पूरी बॉडी में पंप भी करेगा। सो सारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड तो मिल रहा है,
सिर्फ हार्ट काम नहीं कर रहा था तो उसका हमने सब्स्टिट्यूट निकाल दिया। सो ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक स्पेशल टेक्नीशियन होता है, जैसे डायलिसिस के टेक्नीशियन होते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं। सो जब भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ये कार्डियोपल्मोनरी बाईपास के टेक्नीशियन अलग से आते हैं एंड दे हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गलती से मशीन बंद हो गया then patient will for sure patient will die because वो ये मशीन पर ही जिंदा है। so ideally ऐसे प्रोसीजर की जाती थी, but ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट ये मिड कैप प्रोसीजर है। मिड कैप प्रोसीजर में मिनिमम हम सिर्फ वो कैथेटर इंसर्ट करके करते हैं, नो इंसिजन इज रिक्वायर्ड, देयर विल बी नो इंसिजन, थोरेकोटॉमी इंसिजन नहीं होगा, ना कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की जरूरत होगी, कुछ नहीं, मिनिमली इन्वेजिव कर रहे हैं। सो दिस इज गुड थिंग, पेशेंट को हम ऐसे कर सकते हैं। सो मिड कैप अब नई एडवांसमेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी की बजाय डॉक्टर्स मिड कैप प्रीफर करते हैं। ओके, देन प्री ऑपरेटिव, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इंसिजन रखते हैं, इट इज नॉट इन्वेजिव प्रोसीजर, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। सो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या होंगे? फैमिलियराइज द क्लाइंट एंड फैमिली विद द कार्डियक सर्जिकल क्रिटिकल केयर यूनिट। पेशेंट को बोल देना है, फैमिली मेंबर्स को भी पहले से फैमिलियराइज कर देना है कि आफ्टर सर्जरी यू विल बी इन अ SICU, सर्जिकल क्रिटिकल केयर यूनिट। सर्जरी के बाद ICU में हो गया, पहले से उनको बता दो, कार्डियक ICU जो होता है उसमें हो गया। Inform the client to expect a sternal incision, possible arm or leg incision, 1 or 2 chest tubes or Foley's catheter, and several IV fluid catheters. पेशेंट को पहले से ही बोल दो कि सर्जरी में जब आपको होश आएगा तब एक बड़ा सा स्टर्नम पर इंसिजन होगा। ये हम नॉर्मल सर्जरी की बात करें, बड़ा सा स्टर्नम पर इंसिजन होगा, लेग्स में इंसिजन होंगे बिकॉज वहां से हमने वेन ली थी। फिर चेस्ट ट्यूब्स होगी, 1 या 2 चेस्ट में ट्यूब्स अप्लाई की होगी, एक ड्रेनेज के लिए, एक परफ्यूजन के लिए, और ऐसे चेस्ट ट्यूब्स होगी, फॉलिस कैथेटर होगा, बहुत सारी IV ट्यूबिंग्स होगी। सो ये सब पहले से होगा तो पेशेंट डर ना जाए, जैसे ही आंख खुले तो वो डर ना जाए। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट endotracheal tube will be also in place for short period of time and that there will be unable to speak. पेशेंट को इंट्यूबेट किया होगा, जनरल एनेस्थेसिया जब भी देते हैं तब इंट्यूबेट किया जाता है, बट ये पेशेंट क्रिटिकल है, ओपन हार्ट सर्जरी की है हमने, सो आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट इंट्यूबेटेड ही होगा। सो पेशेंट को बोलना है पहले से ही कि सर्जरी के बाद जब आप ICU में जाओगे तब ऑलरेडी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट होगी, आप वेंटिलेटर पर होगे तो आप बोल नहीं पाओगे। Advise the client they will be on a mechanical ventilation to breathe and the ventilator and not to fight with it. पेशेंट को पहले से ही बोल दिया है कि आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर ही हो गया आफ्टर सर्जरी, तो उससे ही सांस लेनी है, उसके साथ फाइट नहीं करना है कि ये क्या डाला है क्या है, वो सब ऐसा कुछ नहीं करना है। Instruct the client that post operative pain is expected and that the pain medication will be available. पेशेंट को बोलना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा, वो सीवियर होता है, स्टर्नल पेन, पूरा स्टर्नम कट किया होता है तो पेन बहुत ज्यादा होता है, तो पेशेंट को पहले ही बोल देना है कि पेन होगा, डोंट वरी, आपको मेडिसिन भी मिलेगी। Instruct the client in how to splint the chest incision, cough and deep breathe, use the incentive spirometry and perform arm and leg exercise. पहले से ही पेशेंट को बोल देना है कि चेस्ट का जो इंसिजन है वो कैसे स्प्लिंट करना है, फीलो से, हाथ से, कॉफिंग डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर कैसे यूज करना है, पैर की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो सब पहले से ही सिखा दोगे। Encourage the client and family members to discuss the anxiety and fears related to surgery. This is a major surgery. तो ऑब्वियसली क्लाइंट को भी डर लगेगा, फैमिली मेंबर्स को भी डर लगेगा, तो उनको आप एनकरेज करो कि आपको जो भी डर लग रहा है, जो भी क्वेश्चन है, प्लीज शेयर विथ मी। Note that prescribed medications may be discontinued pre-operatively, usually diuretics 2 to 3 days before surgery, digoxin 12 hours before surgery, and aspirin and anticoagulants 1 week before surgery. अगर पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है तो डायूरेटिक्स शायद ले रहा होगा तो वो 2 से 3 दिन पहले बंद करना होगा, डिजॉक्सिन ले रहा है तो वो 12 घंटे पहले बंद करना होता है, एंटीकोएगुलेंट्स या एस्पिरिन जो भी चल रहा है तो वो भी 1 वीक पहले बंद करना होता है। Administer medications as prescribed, which may include potassium chloride, antihypertensive, antidysrhythmics and antibiotics. सर्जरी से पहले ही पोटेशियम सबको नहीं देना पड़ता है, बट जरूर शायद देना पड़े तो पोटेशियम दे दो, एंटी हाइपरटेंसिव दे दो कि सर्जरी के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, एंटी डिसरिथमिक्स दे दो बिकॉज सर्जरी के बाद चांसेस है डिसरिथमियास होने का, एंटीबायोटिक जो भी प्रोफाइलेक्टिक है, जो भी आपको प्री ऑपरेटिव फेज में देना है वो सारी मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देनी होगी। देन चलो प्री ऑपरेटिव फेज में हमने सब कुछ कर दिया, अब उसकी सर्जरी हो गई, इट इज नॉट अवर वर्क,
सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, बट पेशेंट अभी कहाँ पर है, कार्डियक सर्जिकल यूनिट, मतलब पेशेंट आईसीयू में है। सो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपका क्या होगा वो हम स्टडी करते हैं। लेट्स सी द क्लिनिकल जजमेंट, एनालाइज क्यू बॉक्स। The nurse is caring for a client who had a cardiac surgery 24 hours ago. 24 घंटे पहले कार्डियक सर्जरी हुई है। The client had a urine output averaging 20 ml per hour for 2 hours. नर्स ने पेशेंट का यूरिन आउटपुट देखा तो 2 घंटे से 20 ml पर आवर आ रहा था। दिस इज गुड और बैड? दिस इज गुड और बैड? Bad. Why bad? 20 ml per hour is not enough. 30 ml per hour होना चाहिए ना. It should be 30 ml, not even 29. So ये तो 20 है। 2 घंटे से, 1 घंटे भी 20 आया, नेक्स्ट आवर भी 20 आया। सो 2 घंटे से 20 ml पर आवर यूरिन आ रहा है। द क्लाइंट रिसीव्ड अ सिंगल बोलस ऑफ 500 ml IV फ्लूइड। फिर फ्लूइड भी मिला है उसको, 500 ml का एनएस भी चालू था। यूरिन आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट आवर वाज 25 ml। सो ये बोलस दिया, फिर हमने 1 घंटे के लिए देखा तो 25 हुआ। डेली लेबोरेटरी रिजल्ट इंडिकेट दैट BUN लेवल इज 45। अब जो पेशेंट होता है, एडमिट होता है, आपने देखा होता है हर रोज, हर मॉर्निंग लैब वाले आ जाते हैं, सैंपल लेके चले जाते हैं। सो डेली मॉनिटरिंग होता है। सो डेली मॉनिटरिंग में आज का ब्लड सैंपल देखा BUN का, तो BUN 45 था। इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कहीं पे कुछ लिखा नहीं होगा, आपको इंटरप्रेट करना है वेदर दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। सो BUN 45 नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? What is the normal value of BUN? Old students, what is the normal value of BUN? चलो न्यू स्टूडेंट्स अभी नए हैं तो याद, अभी तक वो ट्रैक में नहीं आए, बट ओल्ड स्टूडेंट्स you should know, you have already studied F1. 10 to 20 mg. 10 to 20. So is it normal or abnormal? क्या हुआ है? एलिवेट हो गया है कि कम हो गया है? एलिवेट, BUN एलिवेट मतलब क्या इंडिकेट? देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद द किडनीज। दोनों से पता चल रहा है, तो यूरिन आउटपुट BUN। देन क्रिएटिनिन देखा, दैट वाज आल्सो 2.2। नॉर्मल और एबनॉर्मल? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू देन? 0.5 to 1.2. 0.5 to 1.2 कंबाइन, मेल फीमेल दोनों आ गए इसमें। ये 2.2 है। दिस इज आल्सो नॉट गुड फॉर किडनीज। सो इतना क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको क्या इंटरवेंशन करनी है वो ऑप्शन में होगा, बट इतना तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि पेशेंट को है प्रॉब्लम क्या। सो ये सब सुन के, ये सब पढ़ के, द नर्स एनालाइज दिस फाइंडिंग एंड इंटरप्रेट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस acute kidney injury and notifies the surgeon. ये सब देखकर ही पता चल गया कि हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किडनी को सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, तो किडनी खराब हो गई है, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, एंड वी हैव टू इमीडिएटली नोटिफाई द सर्जन। ओके, सो इन आईसीयू, पेशेंट सर्जरी के बाद आईसीयू में है, तो आपको क्या पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन लेनी है? लेट्स स्टडी। मैकेनिकल वेंटिलेशन में कंटिन्यू फॉर 6 to 24 आवर्स। सर्जरी के बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन पर ही होगा, हमने ऑलरेडी पेशेंट को बोला था, तो 24 घंटे तक तो एटलीस्ट होगा। हार्ट रेट एंड रिदम चेक करनी है हमें, पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टीरियल प्रेशर चेक करना है, यूरिनरी आउटपुट चेक करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है। वी हैव टू मॉनिटर ऑल दिस वेरी क्लोजली। पेशेंट की हार्ट रेट कैसी है, रिदम कैसी है, नॉर्मल रिदम में है, पल्मोनरी आर्टरी वहां पर होगी, आर्टीरियल प्रेशर हम सब चेक करेंगे, मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड CVP वो सब मॉनिटरिंग करेंगे, यूरिन आउटपुट कैसा है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, वो सब हम ध्यान से मॉनिटर करेंगे इन आईसीयू। mediastinal and pleural chest tubes to the water seal drainage system with prescribed suction are present. मीडियास्टिनल हमने देखी थी कि चेस्ट पर 2 ट्यूब्स होगी, एक मीडियास्टिनल होगी, एक प्लूरल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होगी। सो दोनों ड्रेनेज को हम सील करके रखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सक्शन। डॉक्टर ने बोला कि इतने सक्शन प्रेशर पर रखना है, तो उतने प्रेशर से वो सब ड्रेन करता रहेगा। ड्रेनेज एक्सीडिंग 100 to 150 ml per hour इज रिपोर्टेड टू PSCP। 100 से कम होना चाहिए। 1 घंटे में 100 ml ड्रेनेज है, दैट इज ओके, बट 100 से ज्यादा है, 100 से 150 तक का ड्रेनेज हो रहा है 1 घंटे के अंदर, दैट इज नॉट गुड। मतलब ब्लीडिंग हो रहा है तभी इतना ज्यादा ड्रेनेज आ रहा है। सो अगर 100 से 150 में ज्यादा जा रहा है तो हमें इमीडिएटली PSCP को नोटिफाई करना होगा।
Epicardial pacing wires are covered with chiral caps or connected to the temporary pacemaker generator. Okay. After open heart surgery, अगर आपने कोई पेशेंट देखा होगा valve replacement या कोई भी open heart surgery वाला पेशेंट देखा होगा तो पता होगा होल्स होते हैं चेस्ट पर छोटे छोटे, उसमें से कुछ वायर्स भी निकलते हैं एंड दिस आर कनेक्टेड विद अ पेसमेकर। वो वायर्स क्यों लगाए हैं? बिकॉज आफ्टर सर्जरी देयर आर चांसेस कि पेशेंट को डिसरिथमिया होगा। सो डिसरिथमिया हो तो शॉक ना देना पड़े, वो ही जो वायर्स है वो शॉक दे देंगे डिटेक्ट करके एंड पेशेंट का डिसरिथमियास कंट्रोल में आ जाएगा, वरना पेशेंट की जान भी जा सकती है। फ्रेशली ऑपरेटेड है, सो डॉक्टर्स जब तक आईसीयू में रहते हैं तब तक ये वायर्स एपिकार्डियल पेसिंग वायर्स होते ही है, हार्ट के ऊपर एपिकार्डियम पर ही वो अटैच किए होंगे एंड वो वहां पर ही रखते हैं। अगर लगता है कि अब पेशेंट स्टेबल हो गया है, देयर इज नो रिस्क ऑफ डिसरिथमियास, तब वो वायर्स निकाल देंगे डॉक्टर, बट तब तक वो वहां पर होंगे तो उसको प्रॉपर्ली कैप करके रखो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को। एंड पेसमेकर के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। ऑल इक्विपमेंट इन यूज मस्ट बी प्रॉपर्ली ग्राउंडेड टू प्रिवेंट अ माइक्रोशॉक। ग्राउंडेड मतलब आपने देखा होगा कि जो हम ये प्लग के अंदर करते हैं तो एक तीसरा टर्म होता है, क्यों होता है? वो ग्राउंड करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव और एक उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये जो भी वायर्स है उसमें से शॉक दे रहे हैं पेशेंट को, सो उसको प्रॉपर्ली ग्राउंडेड रखो। ग्राउंडेड मतलब जमीन के नीचे नहीं, बट उसका बैलेंस रखना है कि पेशेंट को बीच में अचानक से माइक्रो शॉक, छोटे छोटे शॉक ना लग जाए। Then fluid and electrolyte balance is monitored closely. Fluids are especially restricted 1.5 to 2 liter ml because of postoperative edema. फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट खास करके चेक करना है। जनरली इन आईसीयू इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पूरे दिन का 1.5 to 2 लीटर ही दे सकते हैं बिकॉज एडिमा होता है आफ्टर सर्जरी। द ब्लड प्रेशर इज मॉनिटर्ड क्लोजली। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत केयरफुल करना है बिकॉज रैशनल ध्यान रखो, क्यों? हाइपोटेंशन हो जाएगा तो फिर जो हमने वेन ग्राफ्ट नया क्रिएट किया है तो प्रेशर ही नहीं है अच्छा, तो वो ओपन कैसे रहेगा? बिल्कुल प्रेशर नहीं है तो वो तो कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी वेसल्स। सो हाइपोटेंशन होगा तो वो वेन ग्राफ्ट जो हमने नया ग्राफ्ट अटैच किया है वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड अगर हाइपरटेंशन हो गया तो जहां पर हमने सूचर्स लिया है वो फट कर टूट जाएंगे, लीकेज हो जाएगा फ्रॉम द एनास्टोमोसिस साइट। इसीलिए ना हाइपर होना चाहिए ना हाइपो, मेंटेन करना है हमें। सो क्लोजली मॉनिटर करना होगा ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड एंड रीवार्मिंग प्रोसीजर आर इनिशिएटेड using a warm or thermal blankets if the temperature drops below 96.8. yes, ये भी बहुत है, लाइक जब भी ओटी में आपने देखा होगा कितना चिल्ड होता है। सो हमने पेशेंट का ओपन करके हमने सर्जरी किया है, सो इंटरनल टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। सो पेशेंट को टेम्परेचर भी खास मॉनिटर करना है। अगर टेम्परेचर 96.8 से भी कम चला जाता है तो हमें रीवार्म करना होगा पेशेंट को। मैंने जब ओपन हार्ट सर्जरी देखी थी मैं खुद हाइपोथर्मिया में चले गई थी, सो जस्ट इमेजिन पेशेंट का क्या होता होगा। सो रिवॉर्म द क्लाइंट नो फास्टर देन 1.8 डिग्री पर आवर। हमें रिवॉर्म तो स्टार्ट कर दिया बट इतना जल्दी भी रिवॉर्म नहीं करना है। 1 घंटे में 1.8 डिग्री जितना ही टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अगर ज्यादा हो जाएगा तो शिवरिंग हो जाएगा, इसीलिए टू प्रिवेंट द शिवरिंग हम सिर्फ 1 घंटे में 1.8 डिग्री इंक्रीज हो ऐसे ही उसको रिवॉर्म करेंगे। एंड डिसकंटिन्यू रिवॉर्मिंग प्रोसीजर्स व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस 98.6। हमने रिवॉर्म किया, लाइक एक वार्मर होता है जो पेशेंट के ब्लैंकेट के अंदर हम अटैच कर देते हैं, या तो वार्मर ब्लैंकेट्स पेशेंट को देते हैं, हमने सब किया ट्राई। अब पेशेंट का टेम्परेचर हो गया 98.6। नाउ स्टॉप द प्रोसीजर, अब उसको रिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं है। Potassium is administered IV as prescribed to maintain the potassium level between 4 and 5. What is the normal level of potassium? What is the normal level of potassium? 3.5 to 5 milli per liter. Sorry, repeat it. 3.5 to 5 milli per liter. हाँ, 3.5 to 5. So this is the normal. So हमें पता है पोटेशियम डायरेक्टली हार्ट से लिंक है। पोटेशियम 3.4 भी हो जाएगा या 5.1 भी हो जाएगा तो भी पेशेंट को डिसरिथमियास हो जाएगी। सो हमें क्लोजली पोटेशियम मॉनिटर करना है एंड मेंटेन करके रखना है 4 और 5 के अंदर। सो अगर आपको लग रहा है कि कम है, 3.5 तक भी क्यों रिस्क लेना है, वरना कम हो जाएगा तो क्या करोगे? सो 4 to 5 के अंदर मेंटेन करना है। सो पोटेशियम देना है, अगर लग रहा है कि अब 5 के नजदीक जा रहा है तो बंद कर देना है। सो ऐसे करके मेंटेन करके रखना है हमें। The client is monitored for the signs of cardiac tamponade. What is cardiac tamponade?
I have told you. It is another name of something. What is that something? पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सो चेक करना है कि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेड ना हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेड हो गया है? सो इट इंक्लूड्स द सडन सीजेशन ऑफ प्रीवियसली हैवी मीडियास्टिनल ड्रेनेज। हमने देखा था मीडियास्टिनम में एक ड्रेन रखी थी, हार्ट का जो सर्जरी के बाद जो ड्रेन रिमूव करने के लिए हमने ड्रेनेज रखा था। सडनली वो ड्रेनेज, अभी हैवी ड्रेनेज आ रहा था और सडनली बंद हो गया। तो दिस इंडिकेट दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक टेम्पोनेड। देन जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा विद क्लियर लंग साउंड्स। जुगुलर वेन सारी डिस्टेंट हो जाएगी, लंग साउंड क्लियर होंगे। इक्विलाइजेशन ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर एंड पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर एंड पल्सेस पैराडॉक्सिस। राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर होता है वो अलग होता है, बट दोनों इक्वल हो गया है। दिस इंडिकेट्स दैट पेशेंट is suffering from cardiac tamponade. Then suddenly secretions, drainage बंद हो गया है, jugular veins distant हो गई है, but lung sound proper है, and pulsus paradoxus हो गया है। What is pulsus paradoxus? What is pulsus paradoxus? Don't tell me that you have not studied this. ઇન્હેલેશન કરે ત્યારે સિસ્ટોલિક બીપી ડ્રોપ થાય। Yes, during inspiration systolic BP drop हो जाता है। So ये सारे signs है which gives you idea that patient is suffering from cardiac tamponade. So अगर कुछ भी दिखता है तो immediately report करना होगा हमें। Pain is monitored, differentiating sternotomy pain with anginal pain, which would indicate graft failure is. Patient को pain होगा, sternotomy किया है हमने, incision रख के open किया था, अब वहां पर भी पेन होगा, बट हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट को स्टर्नोटॉमी पेन है या एंजाइनल पेन। एंजाइनल पेन कब होता है? हमने ग्राफ्ट किया है, वो भी फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, मतलब मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, पेशेंट हैज एक्सपीरियंस एंजाइनल पेन, कार्डियक चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है। सो हमें पता चलना चाहिए कि स्टर्नोटॉमी पेन है या एंजाइनल पेन है। ऐसा ना हो कि एंजाइनल पेन हो रहा था पेशेंट को, रात ने बोला कि स्टर्नल पेन है, स्टर्नल पेन, एंड पेशेंट फिर उसकी डेथ हो गई। सो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, सो ये आईसीयू में हम ये केयर करेंगे। अब आईसीयू के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। सो जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द आईसीयू टू वार्ड इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, वार्ड में अब क्या ध्यान रखोगे आप? सो वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेरिफेरल परफ्यूजन, वो सब चेक करेंगे। डिसरिथमियास है कि नहीं वो चेक करेंगे, लंग साउंड चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करेंगे पेशेंट का। एनकरेज द क्लाइंट टू स्प्लिंट the incision, cough, deep breathe, incentive spirometer, and raise the secretion to prevent the atelectasis. Yes, so patient को ये सब चेक करेंगे। अब incision, स्प्लिन कैसे करना है, कॉफिंग, डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर कैसे करना है, कि जिससे सिक्रेशंस निकल सके बाहर एंड एटिलेक्टेसिस ना हो, न्यूमोनिया ना हो, ये सब ध्यान रखना है। मॉनिटर टेम्परेचर, डब्ल्यूबीसी काउंट, बिकॉज अगर वो एलिवेट है, टेम्परेचर भी एलिवेटेड है, डब्ल्यूबीसी भी है, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। Provide adequate fluid and hydration as prescribed to liquefy the secretion. Secretion को liquefy करने के लिए जितना fluid जरूरी है उतना देना है, IV fluid या orally. Assess the suture line and chest tube insertion site for redness, prurient drainage and signs of infection. Suture line daily हम चेक करेंगे, रीडा स्कोर, जो ड्रेनेज इंसर्ट किया है वो भी चेक करना है कि prurient drainage तो नहीं हो रहा है. All this indicates the presence of infection. Assess the sternal suture line for instability which may indicate infection. Sternal suture line में भी instability है, redness हो गया है, वहां पर से भी pus जैसा drainage हो रहा है. This also indicates infection. Guide the client to gradually resume the activity. अब patient ICU में से बाहर है, मतलब धीरे धीरे वो बेड से उठ सकता है, कर सकता है. So patient को बोलना है कि धीरे धीरे gradually activities करो, suddenly सब कुछ मत करो. Assess the client for tachycardia, postural hypotension, that is also called as orthostatic hypotension, fatigue before, during and after activity. चलो पेशेंट खड़ा हुआ, उसने सोचा कि मैं यहाँ से यहाँ पर जाके बैठता हूँ। सो जब भी पेशेंट कुछ भी एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी की वजह से उसका टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है, फटीग तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करनी है। बिफोर एक्टिविटी कैसा है, आफ्टर एक्टिविटी कैसा है, एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी भी कैसा है, वो तीनों टाइम हमें चेक करना होगा।
Discontinue the activity if the BP drops more than 10 to 20 mm of Hg or if the pulse increases more than 10 beats per minute. हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है. सो क्लाइंट ने कुछ एक्टिविटी की और सडनली उसका बीपी ड्रॉप हो गया ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से. सो सडनली 10 या 20 mm Hg ड्रॉप हो गया. सो इमीडिएटली पेशेंट को जहां पर भी जगह मिले उसको बिठा दो. स्टॉप दैट एक्टिविटी इमीडिएटली. अगर हार्ट रेट 10 से भी ज्यादा हो गई है तो भी इमीडिएटली उसको बिठा दो, वरना ज्यादा हार्ट रेट की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, वो जो हमने एनास्टोमोसिस किया है ग्राफ्ट वो लीक हो जाएगा, कम ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन होगा तो ग्राफ्ट फेलियर हो जाएगा. इसीलिए ये इमीडिएटली स्टॉप करना होगा. मॉनिटर द एपिसोड्स ऑफ पेन क्लोजली. पेन बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को, स्टेनोटॉमी वाले पेशेंट को, तो पेन मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, पेन के एपिसोड्स भी क्लोजली मॉनिटर करना है. अब पेशेंट हो गया डिस्चार्ज, पोस्ट वार्ड में क्या केयर किया, अब डिस्चार्ज होगा तो घर पे पेशेंट को क्या केयर करना है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेशन देना पड़ेगा हमें. सो लेट्स सी बॉक्स 53.2 कि घर पे पेशेंट को क्या ध्यान रखना है. प्रोग्रेसिव रिटर्न टू द एक्टिविटीज एट होम. धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज चालू करनी है, सडनली नहीं करना है. लिमिटिंग ऑफ पुशिंग और पुलिंग एक्टिविटीज फॉर 6 वीक्स फॉलोइंग डिस्चार्ज. डिस्चार्ज के बाद 6 वीक तक, 1.5 महीने तक पेशेंट कोई भी पुशिंग या पुलिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता. मेंटेनेंस ऑफ इंसिजनल केयर एंड रिकॉर्डिंग द साइंस ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग एंड ड्रेनेज. जो इंसिजन है उसकी केयर करनी है पेशेंट को घर पे. रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, कुछ ड्रेन हो रहा है तो इमीडिएटली रिपोर्ट भी करना होगा. स्टेनोटॉमी इंसिजन हील्स इन अबाउट 6 to 8 वीक्स. 1.5 से 2 महीने लगेंगे उसको हील होने में. सो तब पेशेंट को केयर करनी होगी. अवॉइडेंस ऑफ क्रॉसिंग लेग्स, wearing elastic hose as prescribed until edema subsides, and elevating the surgical limb if used to obtain the graft when sitting in a chair. अगर पेशेंट को पैर में से वेन लिया है तो पेशेंट को बोलना है क्रॉस दे करके नहीं बैठना है. देन इलास्टिक होस पहन के रखना है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो. एडिमा जब तक सबसाइड नहीं हो जाता तब तक वो पहन के रखना है. अगर चेयर पर बैठे हो तो लेग को एलिवेट करके रखना है, डेंगल करके ऐसे लटका कर नहीं रखना है. सामने कुछ टेबल या अदर चेयर रख के उसको एलिवेट करके ही बैठना है. यूज ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन. जो मेडिसिन सर्जरी के बाद डॉक्टर ने दी है घर पे, एंटीप्लेटलेट, एंटीबायोटिक, वो सब चल रही होगी. पेन मेडिकेशन, तो वो सब रेगुलरली लेनी होगी. डाइटरी मेजर्स में क्या ध्यान रखना होगा, इंक्लूडिंग द अवॉइडेंस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड यूज ऑफ सॉल्ट. मतलब हार्ट कार्डियक हेल्थी डाइट लेना है, फैट फ्री डाइट, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, वो ध्यान रखना है. Resumption of sexual intercourse on the advice of the PHCP or cardiologist after exercise tolerance is assessed. Okay. पेशेंट कब से मतलब आफ्टर कार्डियक सर्जरी पेशेंट कब सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर सकता है, तो उसके लिए पेशेंट को पीएचसीपी एंड कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस देनी होगी. जनरली if the client can walk 1 block or climb 2 flights of stairs without symptoms, it is safe to resume the sexual activity. Okay. आइडियली कब डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, पेशेंट 1 ब्लॉक मतलब कितना थोड़ा डिस्टेंस होता है उतना ब्लॉक आराम से चल रहा है, ना कोई सिम्टम है टेकीकार्डिया के, ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ना हाइपोटेंशन, कुछ नहीं हो रहा है, तब पेशेंट हेल्दी है. या तो 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स. 2 फ्लाइट मतलब एक फ्लाइट में 3 स्टेप्स होते हैं, 2 फ्लाइट में 6 होंगे. 6 स्टेयर्स पेशेंट 6 या थोड़े ज्यादा है तो आराम से वो चढ़ रहा है, पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, मतलब पेशेंट अब हेल्दी हो गया है. नाउ द पेशेंट कैन रेज्यूम द सेक्सुअल इंटरकोर्स. विदाउट दैट पेशेंट कैन नॉट स्टार्ट. तो ये इंस्ट्रक्शंस आप दोगे पेशेंट को. ओके, सो that is all about CABG. Next topic है heart transplantation. So do you want me to complete it? Online students? tomorrow कि कल ma'am. other students? मेजोरिटी क्या कह रहा है, कल करना है कि अभी कर ले? चलो बोलो क्या करना है. ओके, कल करेंगे. ओके, सो लेट्स वर्क विथ रिवीजन. आज हमने क्या देखा, हमने आज कार्डियक कैथेटराइजेशन देखा, जो एंजियोग्राफी हम बोलते हैं, वो कैथेटर इंसर्ट करके हम वाल्व चेक कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं, हार्ट के चैम्बर्स चेक कर सकते हैं. उसके प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन देखे. व्हाट इज दिस रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट?
डायरेक्ट। ओके, फिर आगे। યુઝ્યુઅલી કેટલો ટાઈમ લાગે ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ? વોટ ઇઝ ધીસ રેડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आंसर दिस। आई विल नॉट एक्सटेंड इट मोर, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी रिवीजन, पर इसका तो आंसर दे दो। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा है और आप कोई डाई वाली प्रोसीजर करने वाले हो, कोई भी, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोई भी सीटी वाला जो डाई है सब जगह पर, कोई भी डाई वाली प्रोसीजर यूज करने वाले हो तो मेटफॉर्मिन 24 आवर्स पहले ही बंद करनी होती है, वरना मेटफॉर्मिन और डाई रिएक्ट करके लैक्टिक एसिडोसिस कर देंगे, और वो भी इमीडिएटली पोस्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम लगेगा डाई को क्लियर होने में। जब तक रीनल फंक्शन टेस्ट अच्छा ना हो जाए, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ना कर दे, तब तक हम वापस से नहीं स्टार्ट कर सकते। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो सब देख के कि रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है, फंक्शन अच्छा है, डाई निकल गई, सो तभी देते हैं, बट इतना हमें नॉलेज होना चाहिए कि इट टेक्स 48 आवर्स। देन हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन के पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशंस देखे थे। देन आईवीयूएस देखा, मतलब वेसल्स के अंदर से हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, बट उससे साथ साथ सोनोग्राफी भी हो रही है, वी आर नॉट इंसर्टिंग अ डाई। फिर हमने थेराप्यूटिक मैनेजमेंट देखा, हार्ट में हम कौन से थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट हमने देखा पीटीसीए, मतलब बलून वाला कैथेटर इंसर्ट करके बलून एंजियोप्लास्टी हम करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन देखा, प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन देखे। लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी में लेजर बीम का यूज करके हमने पूरा जो प्लेग था उसको वेपराइज कर दिया। सो उसके भी प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर पीटीसीए जैसे ही होंगे, सेम है, कैथेटर सेम। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट देखा, उसमें जो कैथेटर होता है उसके ऊपर स्टेंट रखते हैं, सो स्टेंट वहां पर रहेगा तो आर्टरी ओपन रहेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि वो रह सकता है। प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब भी स्टेंट यूज किया है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन लेना पड़ेगा, बिकॉज स्टेंट वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करके वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करके प्लेग फॉर्मेशन क्लॉट फॉर्मेशन कर देगी। या तो मेडिकेशन वाला ही स्टेंट मार्केट में होता है, डॉक्टर्स तो अभी जो वो ही यूज करेंगे, बट डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन उसको लेनी होगी। देन हमने एथिरेक्टोमी देखा, एथिरेक्टोमी मतलब वी आर रिमूविंग, एक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ समथिंग, बट दैट इज एथिरेक्ट, मतलब प्लेग हम रिमूव कर रहे हैं। सो उसमें जो कैथेटर होता है उसके आगे एक रोटेटिंग चैम्बर जैसा होता है जो प्लेग को छिलकर कट करता है, एंड आगे कैथेटर थोड़ा लंबा होता है, वो सक्शन करके सब कुछ अपने अंदर खींच लेगा, सो कुछ भी फ्रेगमेंट्स छूट ना जाए। उसके भी प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर सेम लाइक पीटीसीए। फिर हमने ट्रांस मायोकार्डियल रीवेस्कुलराइजेशन देखा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जब हम ये कुछ नहीं कर सकते तब डॉक्टर क्या करेंगे, एक छोटा सा इंसिजन रख के सीधा मायोकार्डियम में लेजर वाले प्रोब से होल्स क्रिएट कर देंगे, 20 to 24 होल्स क्रिएट कर देंगे, सो वहां पर नई वेसल्स फॉर्म हो जाएगी एंड ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन हमने सीएबीजी देखा, जब ऑक्लूजन बहुत ज्यादा है, मेडिकल मैनेजमेंट सब फेल हो गया है, तो डॉक्टर बाईपास कर देंगे, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है उसको स्किप करके नई जगह से सीधा सर्कुलेशन हम दे रहे हैं। सो आइडियली लेग में से या इंटरनल मेमोरी आर्टरी या कोई भी बॉडी में से वेन और आर्टरी डॉक्टर ले सकते हैं एंड ये बाईपास कर सकते हैं। यूजुअली ओपन हार्ट सर्जरी होती थी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो, बट ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट मिनिमली इन्वेजिव भी हो सकता है, दैट इज मिड कैप। ओपन हार्ट इंसिजन की भी जरूरत नहीं है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सीधा लेप्रोस्कोपी जैसे छोटे छोटे होल्स होंगे एंड डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। उसके हमने प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे, पोस्ट ऑपरेटिव में आईसीयू में क्या ध्यान रखना है वो देखा, वार्ड में क्या ध्यान रखना है वो देखा, एंड घर पे पेशेंट को क्या ध्यान रखना है वो हमने स्टडी किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट? नो ओके। मैम। कल हम जो स्टडी करने वाले हैं डिस्ट्रीजिमियास, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू इंटरप्रेट द ईसीजी। ईसीजी स्ट्रिप आपके सामने हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया क्या है। सो वो इंटरप्रिटेशन हम कल स्टडी करने वाले हैं। सो टुमारोज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ स्ट्रिप दी गई होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या हो रहा है पेशेंट को, राइट?
सो कल फ्रेश माइंड से आना, तो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड हो, एंड कल हम ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.